Namaskara everyone. Welcome to Bhumi's event, Journeys with Bhumi Vasi. एक दो चीजें, just a couple of things that today's event is going to be uh, bilingual, so थोड़ा खिचड़ी होगा, हिंदी और अंग्रेजी का. The speakers will try to primarily share their stories in Hindi, but इन बिटवीन जैसे हम लोग इंडिया में करते ही हैं, हिंदी इंग्लिश में बात करेंगे. इफ एनीबडी डज एनीबडी हियर हैव प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हिंदी, उनके लिए हम लोग चैट में लगाएंगे. we'll do the transcription on chat whenever possible, sort of a summary. We'll do that. And yeah, we will see how this works. This is the first time we are trying this out. Most of our events have been in English, but we thought that this could be the beginning. सोचा कि हम शुरुआत करें, reaching out to many other people in different parts of the country who may not be well versed with English. So पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा, so please bear with us. And yeah, I think the series Journey with Bhumi Vasi is mostly about what have the fellows who have come out of Bhumi College, वो लोग क्या कर रहे हैं. हम so we are just trying to know their stories, and a lot of them, like you will see today, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो. They're doing amazing work in whatever field that they're working in, whether it's in afforestation, whether it's with education, whether it's with urban governance issues and social justice. So that will be the focus of this entire series. We have more of these coming up next weekend as well, 7th, 8th. So if you're interested in joining those, you can. Yeah, I think what I'll do is I'll just hand it over to Farah to maybe do a quick intro about Bhumi College, and then फिर वहाँ से we'll take. Yeah, thanks आदिल. और जैसे आदिल ने बोला, we are going to try to do a mix of Hindi and English. But as I was thinking about introducing Bhumi College, it seemed very difficult to do that in Hindi. So I think I will start with English. I will introduce college in English only, and then we will switch to a mix of English and Hindi. Yeah, so Bhumi College and Bhumi Network both are units of KNA Foundation for Education, which is a public charitable trust, which also runs the Prakriya Green Wisdom School. So both Bhumi College and Bhumi Network, they were started in 2008 with the focus on creating spaces and engaging with individuals and groups to help them move towards a more sustainable and more ecologically wise living. So that's the main focus. So all the activities that are done at either college or at Bhumi Network, the main focus is either holistic education or sustainable living. So under Bhumi Network, we have 3 spaces where projects are going on, various projects are going on. So the first one is the Bhumi Eco Village at Tiruvannamalai, where an 80-acre dry land has been greened. We have been working there for past 5-6 years, and we have greened that whole area. And so there we are doing ecological farming, as well as we are working with the local livelihood options for the self-help groups in the nearby villages. The other is our Gumlapuram Organic Gurukul. That's another organic farm. The main focus there is to train the rural youth as well as students of agriculture in organic farming. We also conduct programs for groups and families who are interested in learning about organic farming and other things, some processes in sustainable living. The third space is
Sharavati Rainforest Center, which is situated in the midst of Sharavati Rainforest. And there the main focus is afforestation and the conservation of indigenous species of plants and trees. So that is Bhumi Network. Under Bhumi College, our main focus is to educate people about holistic education and sustainable living, and bring more awareness and consciousness and sensitivity towards issues related to these topics. So we do two main things. One is the short programs. So last year, because of this pandemic thing, we have been offering many online sessions, short sessions, weekend programs, webinars, open sessions, and some theme-based sessions. Some of the themes that we have offered are connected to food health and immunity, or exploring self, or looking at the whole picture, looking at Gaia, the living earth, as the concept. So some of these topics that we have offered. Bhumi, the main thing that we do is offer a fellowship program, a 6-month fellowship program. The focus in this fellowship program is to enable people to make more informed choices. And there are many people who want to go on an alternative path, but somewhere they still have some concerns, some doubts, some questions in their mind. So in a way, this course helps them strengthen their conviction, make firm up their decisions, and make informed choices. And this course is open to anyone who is willing or who wants to take an alternative path, wants to move away from the mainstream. So the course has 3 components. One is the foundation module, where we cover some of the topics, such as looking at the current economic system, or connecting with self, land, and community, or the communication, how we can use communication as a medium to give message to the larger world about what we want, the kind of changes we want to see, and crafts and working with hands, the significance of it. So some of these things form and also working with the self-exploration program. These are part of the foundation module. And then we have an elective. So as of now, we are offering 3 electives: holistic education, ecological farming, and education for sustainability. And the third component is internship. So where you go out and work with your hands and do experiential work in the area that interests you. So that is in short about Bhumi College and Bhumi Network. More information is available on website. You can visit, or we are doing presentations for people who are interested in joining the fellowship program. Many of the Tuesdays, we offer a presentation. We are doing a presentation. So if you wish to join any of those, you can write to us. So Adil, we can move now. Yeah, we can. So I think we are starting. We'll go to now our speakers. So we have 3 speakers for today's session. So we'll begin with Hema Patidar. उनसे हम शुरू करते हैं अपना सेशन. तो हेमा थी हमारे फेलोशिप होलिस्टिक एजुकेशन की, उन्होंने ज्वाइन किया था 2015-16 बैच में. हेमा इंदौर में रहती हैं और वो अपना स्कूल चला रही हैं. वो शी इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल सन मरीनो पब्लिक स्कूल. लेकिन मैं उनके बायोडेटा पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, आपने पोस्टर में भी देखा होगा. जो मुझे बात करनी है उनके बारे में वो मेनली है कि हाउ डिड आई एक्सपीरियंस, व्हाट वाज आवर एक्सपीरियंस ऑफ हेमा एज अ पर्सन. तो 3 चीजें जो बहुत ही स्टैंड आउट करती हैं मेरे लिए, व्हाट आई वैल्यू इन हर. वन इज दैट हेमा इज सच अ लर्नर. उनका जो लर्निंग एबिलिटी है, तो वो जब यहाँ पे थी कोर्स में, हर चीज को जितनी सिंसियरिटी के साथ और इतने
ध्यान से वो सुन के उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, बिल्कुल जैसे कोई स्पॉन्ज एब्जॉर्ब करता है एवरीथिंग, सब कुछ को इतनी सीरियसली उन्होंने एब्जॉर्ब किया है यहाँ पर। The second thing that I really see is that हम सब सीखते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें हमारी लाइफ में आती हैं, हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, फिर कुछ चीजें बहुत मीनिंगफुल लगती हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ये हमें अपनानी चाहिए, बट हमारे सीखने के बाद उसको एक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है, हम उसको धीरे धीरे जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने हेमा को देखा है, वो वापस गई अपने स्कूल में एंड इमीडिएटली शी स्टार्टेड एक्शनलाइजिंग all her learnings, and she would keep us posted about what she was doing in the school, and we would really feel so good कि सब कुछ उन्होंने एक के बाद एक सब कुछ उसको जिस तरह उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, एक्शनलाइज किया अपने स्कूल में, रियली रियली commendable. And the third thing जो मुझे लगता है कि she's also one influencer. तो वापस जाने के बाद एक तो उन्होंने ये सब इम्प्लीमेंट किया अपने स्कूल में, बच्चों के साथ काम किया, तो not only with children, she worked with the group of teachers and she worked with the group of parents and influencing their mindset, उनको चेंज करना एंड स्कूल में वो सारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस शुरू करना। तो really in very short time she's really implemented many of those sustainable practices in her school. तो बस इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, बाकी आप हेमा की स्टोरी उनसे सुनिए, उनकी जुबानी। तो हेमा, ओवर टू यू। Thank you so much, Farah, for these words of appreciation. But you people and Bhumi College really deserve it. Because एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी जो मैंने भूमि में जाने के बाद ही लिखी थी, और उससे मैं अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी, अपनी यात्रा की शुरुआत करना चाहूंगी। मैं तो थी एक बीज अनजाना, जिसे मैंने खुद नहीं जाना, भूमि ने मुझे अपने से जोड़ा और मेरे अंतर्द्वंद को तोड़ा। पाकर गुणी जनों का साथ मेरा भी बढ़ गया आत्मविश्वास, जिस राह से थी मैं अनजान, जान गई मैं अब वो बात। इस बीज से मुझे वटवृक्ष बनाना, भूमि से मुझे अब दूर नहीं जाना, भूमि से मुझे अब दूर नहीं जाना। और रियली मैं भूमि से दूर नहीं हूँ, हमेशा भूमि को कनेक्टेड महसूस करती हूँ। आप सभी का जो हेल्प और सहयोग मुझे मिलता रहता है टाइम टू टाइम, उससे मैं हमेशा भूमि को एक अपनी यात्रा का अभिन्न हिस्सा मानती हूँ। नमस्ते, सुप्रभात एंड से वाटर मॉर्निंग टू all present here, all my mentors, my co-travelers and learners. Now I would like to share my story, यात्रा भूमि से जन्मभूमि की, भूमि से कर्म भूमि की यात्रा। मेरी जो लर्निंग थी भूमि में, उसके बारे में बताना चाहूंगी। ये एक अलग ही दुनिया मुझे महसूस हुई, जो मैंने सोच रखा था लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन जो सारा मैंने सोचा था वो मैंने भूमि कॉलेज में जाके महसूस किया। एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी, कंफर्ट जोन के बाहर ही लर्निंग है, क्योंकि जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो हमारी लर्निंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने 2 साल के बेटे को लेकर भूमि पहुंची थी, भूमि कॉलेज बैंगलोर, और उसको एक डे केयर में रख के मैंने अपनी यात्रा शुरू की। वहां पर जो भूमि कॉलेज में मैंने महसूस किया, बहुत हेल्दी और हैप्पी माहौल था। क्योंकि अगर आपको माहौल बहुत हैप्पी और हेल्दी मिलता है तो आपकी लर्निंग वहीं से शुरू होती है। अगर आप बहुत डरे हुए और बहुत टेंस्ड होते हैं तो शायद आप उतना नहीं सीख पाते हैं जितना सीख सकते हैं।
तो वहाँ जो मैंने सीखा वो था सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, होलिस्टिक एजुकेशन विद डिफरेंट टीचिंग पेडागोजीज, वर्कशॉप्स, विजिट्स, हैंड्स ऑन वर्क एंड प्रेजेंटेशंस। इन सब से जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा वो मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, जो मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया। आई फाइंड आउट माई स्ट्रेंथ्स एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई वीकनेसेस ऑल्सो। भूमि में जाकर मैंने सीखा कि लाइब्रेरी का बेस्ट उपयोग कैसे किया जाए। बुक्स रीडिंग का इंटरेस्ट तो मुझे था ही, बचपन से था, लेकिन बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वह इसमें अपना लगाव महसूस करें, लगाव बनाएं। और जब मैंने वहाँ गिजुबाई बदेका, टोटो चैन जैसी बुक्स को पढ़ा, अपनी लाइब्रेरी में उन्हें शामिल किया और बच्चों को, टीचर्स को मोटिवेट किया बुक्स को पढ़ने के लिए। और डेफिनेटली जब ये बुक्स टीचर्स ने भी पढ़ी तो उनमें भी काफी चेंज महसूस हुआ, वो भी एक लिंग्विस्टिक उनका इंटेलिजेंस था वो इम्प्रूव हुआ। आई बिकम सेंसिबल टुवर्ड्स इन्वायरमेंट ऑल्सो। और जो एक हीरोज जर्नी और जोहारीज विंडो के बारे में मैंने वहां समझा और पढ़ा, मैंने महसूस किया कि डेफिनेटली हम सभी अपनी लाइफ के हीरोज हैं और हमारी लाइफ में हमेशा अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। तो जब हम लाइफ में डाउन्स हों तो हम उससे घबराएं नहीं, बिकॉज एक समय के बाद अप्स भी आएंगे। और जब हम ऊंचाई पर हों तो ये भी ना सोचें कि हम हमेशा इसी ऊंचाई पे रहेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कभी डाउन्स भी आएंगे, तो हम फ्यूचर के लिए रेडी हो जाते हैं। इस तरह भूमि ने मुझे भी अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तैयार किया। आफ्टर भूमि जो मैंने चैलेंजेस महसूस किए वो काफी चैलेंजेस थे। इट वाज नॉट ए इजी, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम स्कूल में अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस स्टार्ट करना, वहां पर टीचर्स की वर्कशॉप्स मैंने ली। इन टीचर्स की वर्कशॉप्स के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों की भी सेशंस लिए, पेरेंट्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लिए, और इन सब के साथ एकेडमिक कैलेंडर्स जो स्कूल का बनता है, उस एकेडमिक कैलेंडर में सारा लेसन प्लानिंग में, क्यूसीटी, एएलएम में बात करूं, जो मैंने सीखा भूमि में, एमआई लर्निंग स्टाइल, माइंड में, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, वो सभी हमने अपने प्लानिंग में डाली। और कुछ क्लासेस से शुरू किया, नॉट फॉर द ऑल क्लासेस, लेकिन कुछ क्लासेस से शुरू किया। जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमने भूमि से आने के बाद शुरू की थी उनमें था ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन में बच्चों ने प्लांट्स लगाए। वैसे तो सैन मेरिनो में करीब 3000 हर्बशप्स और ट्रीज हैं, लेकिन जो नियर बाय विलेज एरियाज हैं, नियर बाय पंचायत भवन है, मुक्तिधाम है और पुलिस स्टेशन है, इस तरह की काफी जगहें थी जहां पर हमें प्लांटेशन होना चाहिए। तो बच्चों के साथ, बच्चों को इन्वॉल्व करके प्लांटेशन किया गया। और न केवल प्लांटेशन, बच्चों ने उसकी देखभाल भी की, समय समय पर वहां जाकर जो आवश्यकता थी वो पूरी की। तो इस तरह से एक प्लांटेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया गया। और उसी के साथ स्कूल में हम लोग जो एक काम करते हैं वो होता है वृक्षाबंधन। जनरली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन, लेकिन हमने बच्चों के साथ मिलकर एक रक्षाबंधन एक को उत्सव के रूप में मनाया। और बच्चों ने शपथ ली कि वो पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे। उन्होंने पेड़ों को राखी बांधी, उन्हें गले लगाया। और क्योंकि बच्चों को ये पता है कि प्लांट्स हमारी रक्षा करते हैं, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या देना चाहिए, तो दे फील कनेक्टेड। उन्होंने इस उत्सव को बहुत ही मन से और खुशी से मनाया। साथ ही स्कूल में सेव बर्ड्स के लिए एक मुहिम चलाई हमने देखा था भूमि में बर्ड्स और ट्रीज और प्लांटेशन को लेकर काफी अवेयरनेस थी। वही चीजों को कनेक्ट करते हुए हमने इसे आगे बढ़ाया और बच्चों ने बर्ड्स के लिए दाना पानी रखा, बर्ड्स के लिए उन्होंने शिकोरे बच्चों को वितरित किए। हमने बच्चों ने बर्ड हाउस बनाए, इको फ्रेंडली बर्ड हाउस बना के अपने अपने घरों में उसे लगाया और इस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाया। साथ ही बच्चों को नेचर वॉक करवाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे नेचर के लिए कनेक्टेड होते हैं, नेचर से उनका लगाव बढ़ता है। और छोटे बच्चों से लगा के बड़े बच्चों तक वो नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम सभी पर्यावरण से ही सीखते हैं।
इस नेचर वॉक के साथ साथ बच्चों ने गार्डनिंग भी शुरू किया। स्कूल में छोटे छोटे पैचेस हैं जो हमने बच्चों को क्लास वाइज दे दिए। जिन क्लासेस के बच्चे वहाँ आते हैं वो वहाँ सीड्स सॉ करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसे पानी देते हैं और उसकी केयर करते हैं। साथ ही उनसे जो वेजिटेबल्स बनती है उसको एक मार्केट जैसा बच्चे ही वहाँ से सेल करते हैं, जिससे उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। साथ ही बच्चा सीखता है कैसे मुझे कैसे मुझे अपने वेजिटेबल्स को सेल करना चाहिए, कैसे बार्गेनिंग होनी चाहिए। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें बच्चे वहां से सीखते हैं। इसके साथ ही ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड। स्कूल में हमने बच्चों से सीड बॉल्स मंगवाए, सीड्स मंगवाई, जिन सीड्स को बच्चों ने स्कूल में लाके उनसे बॉल्स बनाई विद द हेल्प ऑफ मैन्योर, सॉइल, सैंड। और जिन सीड बॉल्स को हम बच्चों को विभिन्न जो स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उनमें बच्चों को एज अ गिफ्ट देते हैं, जिससे पर्यावरण के लिए भी पर्यावरण में भी ये फायदा पहुंचाता है। साथ ही बच्चों को भी नई चीज सीखने का मौका मिला। कम्युनिटी के अदर मेंबर्स भी इसमें शामिल हुए थे, पेरेंट्स भी शामिल हुए थे, और डॉक्टर राम एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया हमें। स्कूल में सेव वाटर मॉर्निंग बोलने की परंपरा हमने शुरू की। जैसे हमने भूमि में देखा कि वहां पर न केवल हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड को वैल्यू दी जाती है, बल्कि पानी का, इन्वायरमेंट को सेव करने को लेकर भी काफी अवेयरनेस है। तो वहां पर हमने बच्चों के साथ एक सेव वाटर कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ दोज हु आर अनम्यूट? ओके। सो वाटर रैली बच्चे निकालकर पानी के अवेयरनेस लाते हैं, इन्वायरमेंट के लिए सबको सजग करते हैं। और सुबह जब बच्चा स्कूल आता है तो स्कूल में सिर्फ गुड मॉर्निंग विश नहीं करता, बच्चा बोलता है सेव वाटर मॉर्निंग, सेव वाटर आफ्टरनून, जिससे एक स्लोगन जो है वो बच्चे सबको बोलकर और सबको सजग करते हैं इन्वायरमेंट को लेकर। इसके साथ फूड और न्यूट्रिशन, जो हेल्दी फूड है, हमने देखा कि भूमि में गुड़ और गुड़ के बने हुए व्यंजनों को महत्व दिया जाता था, शक्कर की बनी हुई चीजें वहां प्रतिबंधित होती थी, और इस तरह बच्चा एक हेल्दी फूड हैबिट डेवलप होती थी। इसी तरह सैन मेरिनो में आने के बाद हमने अपने बच्चों में भी उन वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए उन्हें हेल्दी फूड खाने के लिए मोटिवेट किया। साथ ही सैन मेरिनो में टॉफीज भी हमने बैंड की, क्योंकि टॉफीज खाने से बच्चों की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। उनसे निकलने वाली जो रैपर्स होती हैं वो बच्चों के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो बच्चों ने इस तरह टॉफीज लाना बंद किया और उन्होंने घर के बनी हुई गुड़ की बनी हुई चिक्कीज और लड्डूज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। ये प्रैक्टिसेस भूमि में भी मैंने ऑब्जर्व की थी, वहीं से सीखकर हमने अपने स्कूल में भी ये सब चीजें इम्प्लीमेंट की। और हेल्दी फूड के साथ साथ बच्चों में एक अच्छी आदत का भी विकास हुआ। साथ में भूमि में केवल फूड न्यूट्रिशन को ही महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर भूमि में जो आजकल बहुत ज्यादा हम टेक्निकली गैजेट से भी हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करने लगे हैं, तो ये कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन सब बातों को भी मैंने भूमि में ऑब्जर्व किया था। वहाँ इसको लेकर काफी अवेयरनेस थी, और भूमि से आने के बाद हमने अपने स्कूल में भी इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करते हुए ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव शुरू किया। बच्चे अपने घरों से ई वेस्ट लेकर आए और स्कूल में हमने ये कलेक्ट किया और उसे सही हाथों तक पहुंचाया। इससे पर्यावरण संरक्षण में हम कुछ योगदान भी दे पाए। नॉर्थ इंडिया में आप सब जानते होंगे कि गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। प्रत्येक घर में गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित होती है। बाजार में बिकने वाली मूर्तियां ज्यादातर जो होती है वो पीओपी की बनी होती है, एंड इट्स नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो जो गणेश जी की मूर्ति होती है उसको बनाने की ट्रेनिंग, मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग हमने अपने स्कूल में अपने बच्चों को दी, और बच्चों ने वो मूर्ति ले जाके अपने घरों में स्थापित की। तो स्कूल का एक बच्चा है जिसकी मुझे एक कहानी याद आ रही है उसके बारे में, कि वो बच्चा क्लास 1 में है, आरव।
उसके घर पर जब मूर्ति लाने की बात हो रही थी तो बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं पापा, आप बाजार से मूर्ति नहीं लाएंगे, क्योंकि उन मूर्तियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, वो कंपोस्ट भी नहीं होगी और उससे पानी खराब होगा जब हम उसे विसर्जित करेंगे। तो ये बात पेरेंट्स ने जब स्कूल में वे भी पर्यावरण के लिए इतना सजग हो रहे हैं, और जो टीचर्स बताते हैं, जो हम सिखाते हैं, उसे वो अपनी रियल लाइफ में भी एडॉप्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी बहुत खुशी मिली उससे। इसके साथ ही स्कूल में हमने फार्मर्स मार्केट, ट्रेडिशनल फूड और जो मिलेट्स होती हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं, उनके लिए एक मार्केट ओपन किया। जब हमारा पीटीएम था, पेरेंट्स ने भी उसे अप्रिशिएट किया, और जो अवेयरनेस पेरेंट्स में अच्छे से अवेयरनेस भी आई इस बारे में, एंड इम्पोर्टेंस उन्हें पता चली। साथ ही स्कूल में हमने पॉलीथीन्स भी बैन की। हमने जो गिफ्ट पेपर्स थे, बच्चों को गिफ्ट पेपर की बजाय जो न्यूज़पेपर हैं उसका उपयोग करना करवाया। डिस्पोजल्स बैन किए स्कूल में, और बच्चों ने इसे न केवल स्कूल में बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी अपनाया। जैसे पेपर और जूट के बने हुए बैग्स वो अपने घरों में रखने लगे और बाजार में ले जाने लगे, बाजार से पॉलीथीन्स लेना बंद किया, और इस तरह से उन्होंने अपनी डेली लाइफ में इसे प्रभाव में लाया। तो सुनकर अच्छा लगता है कि बच्चे स्कूल्स के जाने के बाद इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं और अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखते हैं। साथ ही हमने थीम बेस्ड टीचिंग, जैसा कि भूमि में मैंने ऑब्जर्व किया था, जिसमें 5 एलिमेंट बेस्ड एजुकेशन होता था: जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन एलिमेंट्स को समझाते हुए टीचर्स ने ये पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस शुरू करवाई, और इसको बच्चे नोन टू अननोन तक जान पाए, क्योंकि कुछ चीजें उन्हें पता होती है, कुछ उन्हें पता नहीं है। तो जब बच्चे को जो पता है वो अगर समझाया जाए तो धीरे धीरे कहाँ तक हम नहीं जानते हैं वो बच्चे समझ पाते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से समझाया जाता है। ये तो बात हुई हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की, जो हमने भूमि से आने के बाद शुरू की। अगर मैं बात करूं होलिस्टिक ग्रोथ की, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट शामिल है, तो स्कूल में बच्चों ने डोनेशन ड्राइव कैंप शुरू किए। बच्चों ने ओल्ड क्लॉथ्स कलेक्ट करके उन्हें नीडी पीपल तक पहुंचाएं, टॉयस अपने घर से लेकर आए, स्टेशनरी आइटम्स लेकर आए, और उन्हें जिन बच्चों को ये नहीं मिल पाते हैं उन तक पहुंचाया, तो उनके चेहरों पर भी मुस्कान दे पाए, और इस तरह वो सोसाइटी से कनेक्ट हो पाए, इमोशनली अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंट को इम्प्रूव कर पाए। इसके साथ ही माइंड मैप, मैंने जब माइंड मैप को पढ़ा तो सबसे पहले मैंने खुद स्वयं उसको यूज किया, और इससे मैं जब प्लानिंग करती थी तो बहुत ही बेटर प्लान हो पाता था और मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती। उसी तरह जब बच्चों में मैंने महसूस किया कि जो विजुअल लर्नर्स हैं, जो बच्चे पिक्चर्स से अच्छे से सीखते हैं, उन बच्चों के परफॉर्मेंस में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ। टीचर्स के फीडबैक आने लगे, पॉजिटिव फीडबैक आने लगे, बच्चे खुद महसूस करने लगे, एंड दे आर कंटिन्यू विद दिस प्रैक्टिसेस। अभी हर एक सब्जेक्ट में टीचर्स माइंड मैप से पढ़ाने लगे हैं, और MI लर्निंग स्टाइल जो है वो हम अपने लेसन प्लान में टीचर्स ने इसको अडॉप्ट किया है। पर्सनल लाइफ में मैंने सबसे पहले तो महसूस किया कि मेरे स्वयं की फैमिली में, मेरे बच्चों में मैंने जाना कि उनका MI क्या है, उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है। जब मुझे ये पता आया अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने स्वयं का MI और लर्निंग स्टाइल, तो शायद मैं ज़्यादा समझने लगी अपने बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को, क्योंकि आपको जब पता होता है कि ये ऐसा क्यों है या ये ऐसा क्यों नहीं है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती और आप समझ पाते हैं कि उसका अपना स्टाइल है। इसी तरह पेरेंट्स, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जो हमारे टीचर्स हैं, उनके भी इस तरह की वर्कशॉप्स ली मैंने, और जब उन्हें अपने MI लर्निंग स्टाइल का पता चला, बच्चों की MI लर्निंग स्टाइल का पता चला, तो वो जो अपना लेसन प्लान था उसको बहुत बेटर तरीके से, अच्छे से बना पाए और हर एक बच्चे तक पहुंच पाए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है जो कि हर एक बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। और अगर मैं बात करूं क्विसिटी की, क्वालिटी सर्कल टाइम की, तो क्वालिटी सर्कल टाइम से भी काफी फायदा मिला, क्योंकि इस तरह से जब छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी अपने टीचर के साथ बैठकर
मैंने देखा भूमि में जब हम जाते थे तो सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत होती थी वो क्वालिटी सर्कल टाइम से होती थी, और वहाँ हर एक को कुछ ना कुछ बोलना होता था। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। मैंने महसूस किया कि जो बच्चे हेजिटेट करते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो बोलने लगे हैं, वो गुड लिसनर बने हैं, और उनका जो वोकैबुलरी डेवलपमेंट है, उनकी जो श्रवण शक्ति है वो भी बढ़ी है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे बेटर वे से। इसी तरह उनकी जो भी जो समस्याएं होती थी उनका निराकरण भी क्यूसिटी में होने लगा। और ये क्यूसिटी न केवल बच्चों के साथ अपितु हमारे टीचर्स के साथ भी इम्प्लीमेंट करते हैं। हम सब टीचर्स के साथ जब बैठते हैं तो कोई भी बात होती, डिस्कशन होता है, वो क्वालिटी सर्कल टाइम में बहुत अच्छे से हम उसे समझ पाते हैं और उसको सॉर्ट आउट कर पाते हैं। इसके साथ ही स्टोरी टेलिंग भी शुरू किया हमने, हैंड्स ऑन वर्क बच्चों ने किए, और काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों ने अपने हाथों से की। ओल्ड एज होम्स बच्चे जाकर वहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्धाश्रम है, वहाँ जाकर, ऑर्फन एज होम जाकर बच्चों से उन जो जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं जो बच्चे, और उन्हें ओल्ड एज होम में रहना पड़ता है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनको कुछ फ्रूट्स और उनकी ज़रूरत का सामान वितरित किया, और इस तरह उनसे कनेक्ट महसूस कर पाए। क्योंकि बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उन्हें कॉग्निटिव डेवलप करना। तो इस तरह से हम ने ये सब सारी कम्युनिटी सर्विसेज भी स्टार्ट की, और साथ में साइलेंट टाइम भी शुरू किया, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपको चुप रहना है, कहाँ आपको बोलना है ये भी उतना ही आवश्यक है जितना कि चुप रहना। तो इस तरह स्कूल में भी जब क्लास में हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चे शोर करते हैं, जनरली टीचर्स बच्चों को क्वाइट कराते हैं, चुप कराते हैं, पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स बोलते हैं। तो जब ये प्रैक्टिसेस शुरू से बच्चे को करवाई जाती है फ्रॉम द एज ऑफ नर्सरी, और जब यही बच्चा 12th तक आता है तो वो इतना क्वाइट हो जाता है, इतना चुप रहने लग जाता है कि जब उसे बोलना चाहिए तब भी वो शायद बोल नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो हमने जो एक प्रैक्टिस शुरू की वो थी जो पूजा की बेल होती, घंटी होती है, उसको क्लास में रिंग करना। हर एक टीचर के पास अपनी एक बेल होती है, और क्लास में नहीं होते हैं या टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं तो टीचर बोलने की बजाय उसे सिर्फ एक बेल रिंग करके सुना देती है। बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन में आ जाता है, दे बिकम सेल्फ डिसिप्लिन विद दिस प्रैक्टिस। और इसका काफी फायदा मिला टीचर्स को भी और बच्चों को भी, बच्चों को डिसिप्लिन लाने में। साथ ही बच्चों को फ्री टाइम भी दिया जाता है, जहां बच्चा अपना फ्री टाइम, अपना टाइम स्पेंड कर पाए, खेल पाए, उसके हिसाब से अपना समय व्यतीत कर पाए। अब now we don't have more time to express about the learning from Bhumi which I learn, but फिर भी जितना मैं समझ पाई, जितना मैंने एब्जॉर्ब किया भूमि से, उतना मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समम सुहृत, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं, और विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं है। I would like to thanks to whole भूमि टीम, सीता, फरा, रमा, इशिता। आपने जो कोर्स डिजाइन किया है वह डेफिनेटली अतुलनीय है, और जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी हमने महसूस किया कि जो शिक्षा नीति में बात कही गई है वो हमने भूमि कॉलेज में काफ़ी पहले ही सीख ली, 2015 में ही मैंने सीख ली थी, और उसे हमने अपनी स्कूल में इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया था। शिक्षा नीति जो कहती है होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात, सस्टेनेबिलिटी की बात, लाइफ स्किल्स की बात, हैंड्स ऑन वर्क की बात, और प्लेस बेस्ड एजुकेशन, ये सभी प्रैक्टिसेस शामिल है हमारी डेली लाइफ में, और भूमि में हमने ये सीखी है। तो भूमि फ्यूचर के लिए भी रेडी कर रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये शायद हमारे भूमि का जो करिकुलम प्लानिंग है उसमें पहले ही था। So I appreciate that thing, and I want to grow each and every child holistically and sustainably, and want to learn new things, new skills and pedagogies for the betterment of each individual learner. Thank you so much for providing this platform to share my journey भूमि से कर्म भूमि। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार। Thank you so much.
Thank you so much, Hema. I mean, I would say, I can only say like, wow, what a journey. Like so many things. I mean, if I say in 5-6 years, इतना कुछ आपने किया है, and खाली किया नहीं है, you have also observed changes, you have implemented, बच्चों में आपने change लाया, उसको देखा. Really hats off to you, Hema. Thank you so much, Farah. Great work. Very inspiring. बहुत ही inspiring है. बहुत ही थैंक यू हेमा जी. आई थिंक एक तो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी को आपने इतनी डीपली इंटीग्रेट किया है, आई थिंक, एंड ऑल्सो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लगता है कि आप वो हो रहा है. सो आई थिंक जस्ट grateful for the work that you're doing, and hopefully you can inspire other principals and other people who are leading organizations, educational organizations across the country. So maybe हम लोग कोई वर्कशॉप कर सकते हैं. Obviously ये मैं भूमि की तरफ से सोच रहा हूँ, but maybe we can do so a much. workshop. Thank you. I absolutely second that, because आपने जैसे बोला कि आपका मेन स्ट्रीम स्कूल था, तो बहुत सारे टाइम ना, lot of time people think it's very difficult to shift from mainstream to alternative, but within 5 years what you have done is it actually sets an example that it is possible. So we can, I agree with Adil, we can offer it like where we can say that it is possible, तो वो हम शोकेस कर सकते हैं. रियली इट इज पॉसिबल, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है. तो जब आप उस ओर प्रयास शुरू करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अचीव एनीथिंग, लेकिन आपको चलना शुरू करना है अगर आपको कोई मंजिल तक पहुंचना है. तो दैट आई स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ माय भूमि कॉलेज एंड माय मेंटर्स गाइडेंस. सो थैंक यू सो मच फॉर यू एंड योर गाइडेंस फॉर दिस. Thank you. So we have kept some time. हमने टाइम लगाया है at the end of all the presentations, जहाँ पे लोग अगर उनको कोई सवाल हो या if they want to like even congratulate you or talk to you or share their perspective, अगर वो करना है तो कर पाएंगे. तो we'll get to that after the 2 presentations. So I think I would like to introduce Paras to present next. पारस को भी मैं काफ़ी साल से जानता हूँ. आई थिंक हम लोग रूममेट्स भी थे भूमि में. आई थिंक एक चीज़ जो लाइक आई हैव नोटिस्ड अबाउट पारस इज हिज कमिटमेंट टू इक्वालिटी और सोशल जस्टिस. लाइक सस्टेनेबिलिटी से भी ज़्यादा मैंने देखा है कि फॉर हिम इट्स इम्पोर्टेंट दैट हम साथ में चले. लगे अगर हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम एक कोई छोटा सा प्रिविलेज्ड या छोटा सा एलीट ग्रुप ही आगे जाए. तो वो समानता पे फोकस, दैट इक्वालिटी पे फोकस, आई थिंक मैंने देखा है पारस में, एंड ऑलमोस्ट लाइक एन इरेशनल कमिटमेंट टू इट देखा मैंने उसमें काफ़ी सालों से देखा है. एंड वो जो अभी काम कर भी रहा है दिल्ली में, आई थिंक इट इज़ the principle is based on that. So I think I would like to invite Paras, please अपने काम के बारे में बताइए और अपने जर्नी के बारे में बताइए. अदिल, आप प्रेजेंटेशन रन करेंगे? मैं माफी चाहता हूँ, मैंने इसको स्क्रीन शेयर में शायद मुझसे कुछ गलतियां हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली मैं आपको सक्षम नहीं समझता इसको समझ पाऊंगा जूम को. अच्छा, आप पीपीटी लगा दीजिए, मैं बातचीत करना चाहूंगा उसी बेसिस पे. आप सभी को नमस्कार, नमस्कारम, नमस्कारा, आदाब. देखिए, आज आदिल ने जैसे बताया आपको मेरे काम के बारे में, और हमसे पहले मैडम ने बड़े संक्षेप में जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है कि लोगों को उन चीज़ों से, उन परिवर्तन से मिलजुल बढ़ाया जाए कि जो आज से सदियों साल पहले लोग करा करते थे, हमें भी वही करना है. मिट्टी को हाथ लगाना है. In a nutshell, if I would say that, you know, sustainability is all about bringing people together, and how do you do it? It's up to you in whatever circumstances you are. मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहता हूँ कुछ नक्शों के साथ. ये नक्शे हैं जो एक गांव को दिखाएंगे आपको कि गांव क्या होता है. दिल्ली में भी गांव हैं, अब कोई इस बारे में नहीं जानता तो मैं उसे जरूर दिखाना चाहूँगा. और मुझे खुशी इस बात की, जो मैंने अभी काम किया है ये
गुजरात से बहुत से लोग जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो वो भी देख पाएंगे क्योंकि उनका भी गांव इसी तरीके से है जो देश भर के गांव हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड आदिल। यहाँ से आता हूँ मैं, ये नाम दिख रहे हैं ऊपर बी से लिखा हुआ है, बुडेला, BUDHELA। ये गांव का नाम है, अब ये शहरीकृत गांव दिल्ली का, और मैं सिर्फ इसके ऊपर बातचीत करूंगा। जो लाल से रंग का आप बीच में कुछ देख रहे होंगे, अजीब सी शेप है, इसको बोलते हैं आबादी। देश भर के गांव 6 लाख, जो 6.5 लाख गांव हैं हमारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में इसको लाल डोरा बोलते हैं, लाल लकीर बोलते हैं। गुजरात से मैडम है, जो गुजरात के गांव है वहां पे इस चीज को बोला जाता है अक्सा चौकसी, यानी गांव के जो लोग रह रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये उनका एरिया है, गांव के लोग रह रहे हैं बीच में। और आसपास जो हरियाली दिख रहे हैं आप, मैंने लेजेंड्स में साहब मेंशन कर रखा है, ये खेती की जमीन होती थी, बैरन लैंड है जिसमें चरागा बोलते हैं, अपने जानवरों को ले जाके किसान छोड़ देता था। उसके बाद कैनाल देख रहोगे आपको राइट साइड में चल रहा है, इससे पानी सिंचाई कर लेते थे, कुएं हैं, कुएं से पानी सिंचाई हो जाती थी, और ऐसे ही एक बीच में कहीं रोड जा रही है कच्ची। ये एक मॉडल है जो आज का नहीं है, पुराना बसा हुआ है। तो सिर्फ ये गांव नहीं, देश भर के गांव में यही मॉडल रहा है, आप कहीं भी जाओगे। उसके बाद सरकार को जरूरत पड़ती है किसानों की जमीन की, और फिर होता है शहरीकरण। तो नेक्स्ट स्लाइड आदिल। ये है जी 50 साल में शहरीकृत हुआ गांव। आज भी आप देख रहे हो बीच में गांव ऐसे के ऐसे ही रहा, आसपास की सारी जगह का सरकार ने शहरीकरण कर दिया। मतलब सरकार ने किसान की कृषि भूमि को ले लिया और उसको पैसे दे दिए उस समय कभी, और शायद थोड़ी वो जमीन दी होगी इधर उधर, बट जो उन्होंने शहर बसाया वो उस गांव के आसपास बसा दिया। खुली रोड, चौड़ी सड़कें, अच्छी खासी इमारतें, जो भी आप शहर में देखते हो, ये इस पूरी काले से रंग की जो एक बाउंड्री है उसके अंदर है। और ये नक्शा जो है किसी भी गांव का हम बना सकते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेके, चाहे मैं दिल्ली में बना रहा हूँ, आप कर्नाटका में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में। इसकी यूएसपी क्या है? इसकी यूएसपी देखिए ये है कि एक शहरीकृत गांव आपको दिखा रहा है कि सरकार किस तरीके से शहरीकरण कर रही है। गांव आज भी वैसा का वैसे ही रह गया और बुरी तरह से बर्बाद है, क्योंकि हम जानते हैं, मैं दिल्ली में अगर कुछ गाँव के नाम लूंगा, बट आप लोग बेंगलोर में हैं तो कोरामंगला आप जानते होंगे, दोदागनली में आप, हाँ कॉलेज स्कूल है, पर जो ये गांव थे एक के बाद एक, वर्थूर या व्हाइटफील्ड जहाँ पर है, महसूस कीजिए कि गांव के ऊपर जो सरकार ने शहरीकरण किया, गांव वालों का क्या हुआ होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस दे वुड बी लिविंग इन। इट इज रियली अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम टू एडजस्ट in this new found or so called modern age of urbanization, urban development, urban planning। वो लोग तो जैसे रह रहे थे, जैसे जैसे उनको रहना आता था, जानवर उनके साथ में हैं, दूध निकाल रहे हैं, सुबह सुबह अपना खेती कर रहे हैं, सामान ला रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं। अब आप देखिए जो ये शहरीकृत गांव कर दिया किस हालत में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक उदाहरण है आपके सामने, ये मैप दिखाता है, मैं लेजेंड्स पढ़ रहा हूँ और आप सब देख पाते होंगे तो ठीक, ये प्रेजेंटेशन आदिल शेयर कर देगा आपसे। ये नीली जो आप एक लाइनें देख रही हैं, ये दिखा रही हैं कि जो पाइपलाइन होती है ना, जैसे आप कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो जो सर्विस सरकार ने दी दिल्ली में या बेंगलोर में एक पाइप नेचुरल गैस की, ये हर जगह है, आप देख रहे होगे आसपास। बीच में जहां मैंने आपको गांव दिखाया था वहां पर नहीं है। और यही है भविष्य शहरीकरण का, कि जब गांव में शहरीकरण होता है तो गांव को नजर में रखते हुए कोई प्लानर कोई सर्विस नहीं बनाता। और यही कारण है कि जब हम देखते हैं अर्बन विलेजेस का नाम आता है कि उनमें रैपिड अर्बनाइजेशन होगी, अनप्लान्ड सेटलमेंट है, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। कारण ये है कि प्लानिंग तो हुई नहीं, देश भर में कोई ऐसा प्लानर ही नहीं हुआ जिसने कभी ये सोचा हो कि जो गांव शहर में आ गया उसको हम कैसे विकसित करें, हाउ डू वी रियली नॉट कन्फाइन इट, ऑर्गेनाइज इट सो दैट सर्विसेज रीच आउट टू देम। बड़ा अच्छा उदाहरण है ये जो हमारी संस्था बना रही है, मैप्स, जिससे साफ दिखाया जाता है कि कैसे किस तरीके से गांव को खत्म किया जा रहा है देश भर में। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, कोई ऐसा महानगर नहीं है जहाँ नहीं हो रहा हो। पुणे में मगरपट्टा आप नाम सुनते होंगे, बड़ी अच्छी जगह है, लोगों को तो चकाचौंध दिखती है ना। सिटी इज ऑल अबाउट समथिंग व्हिच पीपल हैव नॉट सीन बिफोर, उनको वो देखने में लगेगा। 70, 80, 60 के दशक में बम्बई को शहर कहा जाता था, पूरे देश में कोई शहर था ही नहीं जैसे। और अब हम देख रहे हैं बड़े बड़े महानगर बन रहे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। पुणे का तो नक्शा ही बदल गया। बेंगलोर में जहाँ 20-25 लाख लोग रहते थे, अब 1 करोड़ लोग रह रहे हैं। वो कैसे रह रहे हैं आप जानते हैं, कारण यही है। और मैं आज प्रेजेंटेशन में सिर्फ इन्हीं नक्शों के बारे में बात इसलिए करना चाहता था कि आदिल ने इसे बताया। सी सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
बज़वर्ड तो बन ही चुके हैं, लेकिन देयर इज अ काइंड ऑफ प्रिविलेज एसोसिएटेड विद इट. Nobody is trying to understand that, see, villages were always sustainable, in their own way, but परेशानियां थी. People never had this good quality of life, in the sense that एज एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, वो नहीं थी. तो 50 साल जी के किसी कारणों से कोई बुखार में मर जाता था, या कोई एक छोटी छोटी बीमारी से भी लोगों की मृत्यु हो जाती थी. तो कहने का अर्थ, इन अ नटशेल, इज दैट it is important to urbanize, but how exactly do we do it? Should the city grow at the expense of the village, or the villages are integrated in the city? That's the whole story. That इंडिया में अभी 6,50,60,000 के आसपास गांव हैं, और हर शहर में 100-200 गांव हैं जिनकी जमीनों पर शहर को बड़ा किया जा रहा है. दिल्ली में 360 गांव हैं, ऐसे ही बेंगलोर में बहुत सारे हैं. इससे अगला नक्शा दिखाऊंगा आपको मैं. नेक्स्ट स्लाइड आदिल. ये प्लानिंग का नक्शा है, जो अब मैंने आपको लाल रंग का आबादी का एरिया दिखाया है गांव का. वैसे ही सरकार नक्शे जब बनाती है अपने, जिसे हम बोलते हैं ना रेवेन्यू मैप्स, प्लानिंग मैप्स, आप साफ देख सकते हैं सरकार ने एक लाल रंग के जो धब्बे छोड़ रखे हैं, स्पेसेस, ये गांव ही हैं. और ऐसे ऐसे गांव छोड़ रखे हैं बिना किसी प्लानिंग के, क्योंकि सरकार कृषि भूमि की तरफ फोकस करती है, क्योंकि इस पे शहर बसता है. आप तो दिल्ली में आपके मकान, बंबई में, कलकत्ता, बंबई, यहाँ भी आप रह रहे हो किसी शहर में, तो आपके मकान होंगे, कहाँ से आए हो आपके पास? आपने जरूर अपने पैसे से खरीदे हैं. वो जमीन सरकार की थोड़ी ना थी. सरकार ने किसी न किसी किसान या फिर किसी गांव से लेके उसको विकसित किया होगा, पर गांव ऐसे ही छूट जाता है. और इस कारण से कहीं ना कहीं इलीगैलिटीज एक शब्द है एकेडमिया का, मुझे भी पढ़ाया गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको. हिंदी में मुझे ये समझ नहीं, याद नहीं मुझे क्या बोलते हैं उसको, बट इट्स लाइक ये गांव विकसित ना होने की वजह से किसी भी शहर में जो एक समस्या की जड़ होती है कि अनप्लान्ड, जो हम बोलते हैं जगहें, कहीं इलीगल फैक्ट्री चल रही है, इलीगल डेयरी चल रही है, वो इन जगहों में चलती है. क्यों? क्योंकि जो किसान पढ़ा लिखा नहीं होता वो तो वही काम करेगा, क्योंकि दूध उसके लिए कैश क्रॉप है, सुबह वो निकालेगा, शाम को बेच देता है, तो वो पैसे कमा पाता है. सो सस्टेनेबल लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं प्रिविलेज्ड है, ये दिखाने की कोशिश है इन मैप्स के जरिए. नेक्स्ट स्टाइल आदिल. ये उदाहरण है, साफ दिखाई देता है, मैप है, नक्शा है. मैंने नहीं बनाया ये नक्शा, तमिलनाडु के एक बड़े प्रसिद्ध शोधकार हैं, आर भगत नाम है उनका, राज भगत, उन्होंने एक नक्शा बनाया. अगर आप देख रहे हो, ये दिल्ली का एक नक्शा है जो दिखाता है कि आबादी, रेजिडेंशियल एरिया, द पीपल कैसे प्रिविलेज रह रहे हैं आराम से. बीच में दिल्ली कैंट है, आर्मी का एरिया बोला जाता है इसको, बेंगलोर में भी है ये, आपने देखा ही होगा. फिर बीच में नई दिल्ली है कहीं बीच में, और आसपास देख रहे हो कि इतनी बड़े बड़े आबादी के टावर्स हैं. ये एक प्रोजेक्शन है कि 1000 लोगों के लिए इतनी हाइट है, 10,000 लोगों के लिए इतनी है. तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे शहर बस रहा है. और कोने कोने में जो जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, ये गांव है. अभी भी खेती होती है यहाँ पे दिल्ली में, गेहूं चावल बोया जाता है किसान का. अभी आप देख रहे हो देश भर में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, किसान एमएसपी मांग रहा है. दिल्ली में एमएसपी नहीं मिलता किसानों को. तो उम्मीद कीजिए कि जो भारत सरकार कह रही है एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, ये सब क्या कारण है कि दिल्ली के किसानों को इसमें आवाज उठाने को नहीं मौका मिल रहा? क्या दिल्ली की कृषि भूमि यहाँ पे किसानों, पूरे देश भर के किसानों की पोल खोल सकते हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, ये दूसरी तरफ आप महसूस करो ना, उसकी तो जमीन बहुत जल्दी जा रही है शहरीकरण में, और जमीन के दाम आप समझते हैं किस कदर ऊपर बढ़ जाते हैं जहां रोड निकल जाती है. तो किसान उस असमंजस में है. अगर किसी का दिल, पीपल आर इमोशनली रियली पोरिंग दैट ओ फार्मर्स आर इन अ वेरी बैड स्टेट. मैं तो मानता हूं कि जो ये तो 1% भी नहीं है. 1% लोग हैं जो सोच पा रहे हैं कि एमएसपी को लेके वो लोग बहुत चिंतित हैं. अर्बनाइजेशन ने देखिए ना क्या हालत कर दी दिल्ली की. दिल्ली छोटा था 4 स्क्वायर किलोमीटर का, ये लाल किले के आसपास चांदनी चौक, जो आप जानते थे. एक आगे स्लाइड आएगी, मैं दिखाऊंगा, आप महसूस करोगे कि ये सब नक्शे बनाने के लिए जो एक हाउ एग्जैक्टली दिस केम इनटू द पिक्चर. महसूस कीजिए कितनी पॉपुलेशन रह रही है, कहाँ रह रही है. और ये हालत नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जाएगा. आदिल नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये बेंगलोर है आपका. मैंने नक्शा ढूंढा था, मुझे कहीं मैंने कभी दोदा कनेली में है भूमि कॉलेज. आप देख सकते हैं कितना दूर है ये शहर से, और साफ ऊपर दिखाया जा रहा है कि बेंगलोर का अर्बन डिस्ट्रिक्ट था. और अब बेंगलोर की क्या हालत है, जो आप सब लोग बेंगलोर में कहीं ना कहीं रहते हैं तो आप महसूस कीजिए. बट आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड हैव सीन दिस प्लेसेस इन बेंगलोर, कोरामंगला. जो भी भूमि के फेलोज भी अगर कोई बेंगलोर में आए होंगे, आसपास घूमे होंगे, व्हाइट फील्ड ले लीजिए, सरजापुरा रोड, विप्रो का एक ऑफिस है, और बीच में जितने भी गाँव आ रहे थे, आपने कि देखा होगा सिर्फ टावर्स दिखते हैं, गेटेड कम्युनिटीज दिखती हैं, वो जो लेक्स हैं थोड़ी बहुत जिन पे इंक्रोचमेंट्स हैं,
गंदा पानी बहता रहता है, वो दिखती हैं। गाँव का तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ किसी को पता ही नहीं होगा कि व्हाइट फील्ड का जो कोई कोराबंगला गाँव है, जहाँ इंदिरा नगर बसा हुआ है, वहां पर भी गाँव थे। क्योंकि गवर्नमेंट के मॉडल्स ही ऐसे है ना कि जब तक इस पे सवाल नहीं उठाया जाएगा, अनलेस यू क्वेश्चन द गवर्नमेंट दैट हाउ एग्जैक्टली आर यू urbanizing the country, for the growth trajectory we are following, that people should come into the cities, and the labor of the agricultural land should come into the cities and find themselves somewhere, footholds in industries, manufacturing sector, services. क्या हम वाकई में कर सकते हैं इतना? क्योंकि बेंगलोर में जो स्लम्स हैं, बेंगलोर में जो अपना एयरपोर्ट है, वहां से 50-60 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये सब भी तो गांव भी बसा हुआ है। अब आप देखो उसके आसपास के गांव की क्या हालत है, कहीं सीवरेज नहीं है, सैनिटेशन की क्या हालत होगी, पानी नहीं है। बात करते हैं 24 घंटे पानी आएगा, कावेरी से पानी आएगा, ऐसे ही दिल्ली में बोलते हैं 24 घंटे पानी आएगा, बंबई में बोलते हैं। अगर वो जो गांव के जोड़ होते हैं, जो लेक्स हैं, अगर वो वाकई में उनको बचा लिया जाता, द वाटर कुड हैव बीन ट्रीटेड एंड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स ये लग जाएं, तो लोकल लेवल पे पानी की पूर्ति हो जाए। यानी if you are living in a gated community next to a lake, and that lake water is treated well, it can serve you fresh water for drinking purposes. तो आपको जरूरत नहीं है कावेरी से पानी लाने की। जो हम कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करते हैं या फिर एनर्जी नीड्स की बात करते हैं शहर में, वो तो शहर के लोग ही तो बना रहे हैं उसको लग्जरी के नाम पे कि पानी वहां से आ रहा है जी, बिजली वहां से आ रही है। So imagine I am just presenting these inequalities because I care for them and I am working for them. मैं खुद एक शहरी गांव में रहता हूँ। I don't think so anybody can challenge me कि ये तो ऐसे वैसे ही है कुछ भी। एकेडमिया तो देश का ध्यान ही नहीं दे रहा ना, वो तो देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पीपल की कोई बात करता है एनर्जी की, सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, हाइड्रो एनर्जी की, वाटर की। और विलेजेस का तो नोबडी इज रियली टॉकिंग अबाउट द वे दे शुड डू। वो स्वराज लाने की बात जरूर हो रही है कि देश में स्वराज लाएंगे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिल्ली देश भर के गाँव में शहरीकरण हो रहा है। गुजरात में अहमदाबाद के पास कुछ गांव थे आज से 4 या 5 साल पहले, सरकार ने कहा आपका गांव शहरीकृत हो गया, अब आप शहर में हो और हम करेंगे कुछ ना कुछ इधर उधर। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात में जान के कि उन गांव वालों ने केस किया हाईकोर्ट में गुजरात के, और जीत गए इस केस को। उन्होंने कहा हमें हमारी पंचायत चाहिए, हम शहर में नहीं आना चाहते। क्योंकि सब जानते हैं कि शहरीकरण और शहरीकृत गाँव होने से कितना दुर्भाग्य लोगों को महसूस करना पड़ता है। पानी के लिए तरफ जाते हैं लोगों को कि पाइपलाइन नहीं बिछती, क्योंकि शहर में पानी पहले पहुंचाना है, गाँव में नहीं। गांव की जमीन पे शहर बसा लेकिन उनको पानी नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। और इसीलिए गुजरात के उन गांवों ने पहल की थी। ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये एक दिल्ली का ग्रामीण गांव है, डिक्लेयर्ड अर्बन। दैट मींस इट इज डिक्लेयर्ड अर्बन ऑन पेपर, ऑल्दो राइट नाउ पीपल आर फार्मिंग ओवर हियर। अगेन ये लाल रंग का एरिया का आबादी एरिया है। आसपास की लैंड आप 2 हरे रंग देख रहे होंगे, एक हरा रंग है खेती का, डार्क कलर जो गहरा है हरा, और दूसरा है ये ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं इसको, कॉमन्स। देश के हर गांव में होती है। गुजरात, मद्रास में इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बने थे तब मद्रास बोला जाता था, अब चेन्नई बोला जाता है। और जैसे मैंने गुजरात में बताया अक्सर चौकसी, वैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में बोला जाता है पोरम्बोके लैंड, जो चेन्नई और आसपास की स्टेट्स में बोला जाता है। कर्नाटक का मैं नहीं जानता, माफ कीजिए। तो ये जो नीले रंग की पट्टी जा रही है ये नहर है, साहिबी रिवर बोलते हैं इसको, आजकल इसको नजरगढ़ नाला बोला जाता है। इस पानी से किसान यहाँ पे सिंचाई करता है, खेती करता है। यही कारण है कि देखिए दिल्ली में इतनी जमीन है, लोग गेहूं चावल बो रहे हैं लेकिन मार्केट में कोई नहीं बेचता। आप लोग सब मॉल में या कहीं से कुछ खरीदते होगे, किसान मार्केट थोड़ी बहुत लग जाती है, बट महसूस कीजिए इतने बड़े पैमाने पे जो गेहूं चावल बन रहा है, किसानों से कौन खरीदता है? कहीं है ऐसी कोई मंडी कि किसान से जाके खरीद ले? तो किसान तो गेहूं बेचेगा ना, आटा थोड़ा ना बेचेगा। उसको 1900 रुपये क्विंटल चाहिए गेहूं का, चावल का 2000। उसको तो ये समझ ही नहीं है कि वो अगर चक्की लगा के 19 रुपए किलो का 60 रुपए किलो आटा बेचना शुरू कर दे तो he'll be at par with those business people or who understand, who are in the business of value creation for you, for customers like me and you. So ये है एक नक्शा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आप देख रहे होंगे ऊपर कहीं एमपीडी लिखा हुआ, मास्टर प्लान। तो दिल्ली, बेंगलोर, बंबई, पुणे, कोई भी शहर ले लीजिए, अहमदाबाद में मान लीजिए, इनके मास्टर प्लान बनते हैं कि इस शहर में हम अगले 20 साल में ये करने वाले हैं। बट गांव जो शहर में है उनके लिए प्लान में कुछ नहीं होता। 2021 का है ये। आदिल नेक्स्ट प्लान प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये 2041 का है। अब आप देख लीजिए 20 साल हो गए, सरकार ने इनके लिए ना कुछ बनाया ना कुछ। ये एक कारण है जिसकी वजह से गांव पूरे देश भर में खराब हो रहे हैं।
कृषि भूमि पे कहीं कॉलोनी काट दी जाती है, नो इट इज ब्रॉट इलीगली इंटर सम कंस्ट्रक्शंस। किसान की जमीन को सस्ते दामों में खरीद लेता है, वहाँ वेयर हाउस बना देता है या फिर इंडस्ट्री बना देता है, स्कूल बना देता है, कुछ भी, क्योंकि उसके पास तो पैसा है। किसान के पास नहीं तो उसकी जमीन चलेगी सस्ते दामों पे। तो ये किसान के लिए बहुत बड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी पे किसी ने चोट मारी है, जो देश भर में बढ़ती जा रही है। क्योंकि किसान ने कभी खुले, ये देखिए ये सीपी है, कनॉट प्लेस दिल्ली का, आप महसूस कीजिए, बीच में देखिए वो पार्क आता है आसपास, आप जब कोई घूमने आते हो दिल्ली, ये सब आपको ब्लॉक्स मिल जाते होंगे, सीपी का इनर सर्कल, आउटर सर्कल, ये पार्क्स, और फिर दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है एक तरफ, इंडिया गेट एक तरफ। तो एक तरह से गोला ये बीच में आसपास दिल्ली का कुछ एक प्रशासन बैठता है, भारत सरकार बैठती है, बीच में एक गोला सा सरकार ने बना दिया। ये इसने मुझे प्रेरणा दी इस फोटो ने, जब मैंने इसको देखा 2-3 बार। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आदिल। ये हमारा सपना है, ये हमने बनाया है, इसको बोलते हैं वीडीपी, विलेज डेवलपमेंट प्लान। जब मैंने महसूस किया कि दिल्ली क्या देश भर के सारे गांव ऐसे ही हैं, बीच में रह जाते हैं कहीं, और आसपास सरकार शहर बसा रही है, बहुत कुछ कर रही है, बट आने वाले समय में गांवों के लिए कुछ बचता नहीं है। तो हमने क्या किया, बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा हो, अंग्रेजी में लिखा हो ओल्ड आबादी, यानी आबादी एरिया, whether it is for this village or any other village in the country, this is the same। उसके आसपास आप देख रहे होंगे रेजिडेंशियल एरिया, मैंने ब्लॉक्स बनाए, डेयरी कॉलोनी, यानी पीपल हु कैन प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ सस्टेनेबल, जैसे हम भूमि में देखते हैं गाय भैंस है, खेती की थोड़ी जमीन छोड़ दी, एक तरह से एक ऐसा माहौल है जिसमें लोग महसूस कर सकते हैं कि वातावरण, कृषि भूमि, जैविक खेती क्या है, उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन जो खूबसूरती है वो एक तरफ कमर्शियल रेजिडेंशियल हमने थोड़ी जमीनें छोड़ी हैं, और इसके थोड़ा सा बाहर निकलोगे आप देखोगे हर तरफ रास्ता छोड़ दिया हमने, और 45-45 मीटर बिग रोड्स आई हैव लेफ्ट। तो सपना ये है कि आने वाले समय में देश भर के गांव अगर ऐसा सपना लेके चलें कि हमें ग्रामीण विकास योजना बनानी है, मास्टर प्लान तो शहर के बनते आ रहे हैं, बट एक गांव का निश्चित विकास के लिए कुछ योजना क्यों नहीं बन रही, सम काइंड ऑफ मास्टर प्लान, विलेज डेवलपमेंट प्लान, क्या वो बनाया जा सकता है, क्या हम बना सकते हैं? मैंने अपने आप को सक्षम मांगा क्योंकि मेरी टीम में लोग हैं इसी गांव से हैं जो मास्टर प्लान समझते हैं। तो सपना यही था। और ये जो अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए आपको, ये पूरी दिल्ली का मास्टर प्लान है। ये जो गुलाबी रंग के आप भद्दे देख रहे हैं, इनको बोलते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, जो दिल्ली के लिए फेमस है, अखबारों में निकलता है कि दिल्ली में 70% लोग तो ऐसी कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। आज वो खेत था, कल किसी ने कॉलोनी काट दी, रोड निकाल दी, घर बना दिए, 50 गज, 100 गज, 200 गज, 400 गज। तो सरकार ने इसको तो रिकॉग्नाइज कर लिया, गाँव का कहीं भी जिक्र नहीं कर रही है वो। बड़ी बड़ी रोडें देख रहे हैं आप, NH1, NH10। तो मेरा सपना भी यही है कि कैसे मैं एक ऐसा प्लान बनाऊं जिससे ग्रामीण लोग दे कम अंडर दिस परव्यू ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो कि वाकई में सस्टेनेबल है। क्योंकि अगर हम सोच के कुछ बनाएंगे तो भविष्य के लिए बनाएंगे ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आदिल। ये दिल्ली के ऐसे ही गांव है, एक मैंने बस एक और रखा था आपको दिखाने के लिए। देखिए गांव की जमीन जो होती है उस पर गांव के अलावा वाटर, जोड़, तालाब, कुएं, मंदिर, रोड, हर चीज की ना जगह होती है। तो हम बोलते हैं ना कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बनाया नहीं ना किसी ने प्लान ही नहीं किया देना कैसे, कहाँ देना है। आपस में जो महकमे होते हैं सरकार के, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वो लड़ते रहते हैं, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, रोड नहीं है, ऐसा कुछ। बट लकीली आई बिलोंग टू दिस पब्लिक पॉलिसी थॉट्स, एंड मेरा इंटरेक्शन इंजीनियर्स से, कंप्यूटर साइंस के लोगों से रहा। मैं जानता हूँ रिकॉर्ड्स को, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को, पॉलिसीज को। तो ये मैप मैंने वहां से बनाना शुरू किया कि हर गांव का बनाना चाहिए, देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए गांव है क्या। आदिल 2 स्लाइड हो रहा है और दिखा दो आप। उसी तरीके से मास्टर प्लान में आप देख रहे हो गूगल में कैसा दिखाई दे रहा है गांव, लोग रह रहे हैं आसपास, खेत के जमीन कटे हुए हैं। जो आप ये थोड़ा बहुत जहां भी आपको बिल्डअप एरिया दिखाई दे रहा है वो आसपास का गाँव ही है। और कैसे रोड है, सारी जमीनें हैं, बट गाँव को कुछ मिल नहीं रहा है। तो जो इनइक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि कारण क्या है। ऑल्दो लैंड इज देयर, इनफैक्ट ग्राम सभा, पंचायत के पास तो पैसा भी होता है। दिल्ली के गांव वो हैं जिनके पास पंचायत नहीं है। अहमदाबाद के गांव जो लड़ रहे थे अपनी पंचायत के लिए, या फरीदाबाद, या जहां लड़ते हैं लोग, वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि पंचायत को डायरेक्ट पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, और फिर वो रोड बना लेती है, स्ट्रीट लाइट लगा लेती है। दिल्ली विलेजेस की पंचायत आज से 30 साल पहले थी, 31 साल पहले 1990 में भंग कर दी गई थी। दे वर अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट। और क्यों हो सकती है, हम उम्मीद करता हूँ इतना सा हम बात कर चुके हैं। कारण ये है ना कि पीपल ऑर्गेनाइज, और बड़े गांव पे 300-350 गांव की पंचायतें चल रही हैं। गवर्नमेंट अगर कुछ भी करती तो 350 लोग ऑब्जेक्ट करते, अरे सर ऐसे नहीं करने देंगे आपको, तो उन्होंने एक बारी में खत्म कर दिया। तो एक पीढ़ी, 1 जनरेशन को तो खत्म ही कर दिया, जिसको कुछ पता था कि लोकल गवर्नेंस क्या होती है। ये 2021 का प्लान आप देख रहे हो आपके सामने, और अगला आप देखोगे 2041 का। कुछ परिवर्तन नहीं है, गाँव वैसा का वैसा ही है। सरकार ने ऐसी छोड़ दिया क्योंकि सरकार को गाँव की जरूरत नहीं है, गाँव की जमीन की जरूरत है। जब उनको जमीन की जरूरत पड़ेगी तो वो विकास कर देंगे।
कुछ जमीन को लेके इंडस्ट्रियल प्लांट लगा देंगे, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो हम समझते हैं, बड़े बड़े लेवल के प्लांट, पानी का प्लांट, बिजली के खंभे जो देखते हैं दिल्ली में, क्या देश में जो आप घरों में अपनी बिजली देख रहे हो वो आ क्यों रही है? क्योंकि कई ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं आउटस्कर्ट्स के विलेजेस में, वो लाइन जा रही होती है, इसको एचटी लाइन बोलते हैं। तो उन जमीनों पे सरकार की नजर होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने इन नक्शों से आपको ये दिखाया कि ये काम हो रहा है मैप्स का, और साइकिल संस्था ये काम कर रही है कि हम किसानों के साथ पॉलिसी को लेके काम कर रहे हैं। भाई किसी गांव में सरकार ने प्लान किया कि हम यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाएंगे, तो हम दिखाते हैं सरकार को कि ग्रामीण भी ये नहीं चाहते, पॉलिसी भी ये नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे बहुत से नोटिफिकेशंस हैं, जजमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि अब इनकी जरूरत नहीं है वेस्ट एनर्जी प्लांट्स की, तो व्हाई आर यू लाइक मेकिंग दिस पीपल सफर? सो वी आर हेल्पिंग देम इन देयर लीगल अवेयरनेस। और कहीं कोई कोर्ट केसेस जो बहुत सालों से चल रहे हैं, दिल्ली की कुछ गाँव हैं जहाँ पे जो किसान के खेत होते हैं उसमें वेस्ट वाटर यानी जो गंदा पानी होता है गुड़गांव, वो आ रहा है बार बार, फ्लडेड हो जाता है पूरा गांव, ये हालत है। सो वी हेल्प देम इन लीगली realizing them what are their rights and how can they fight their court cases, help them file RTIs। और एक काम जो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, पिछली बार एक भूमि की टॉक थी उसमें मैंने बताया था, तो मैंने तो आपको बताया कि किसान से कोई डायरेक्ट कोई गेहूं नहीं खरीद रहा, चावल नहीं खरीद रहा, बट मेरे मित्र इतने सारे हैं गाँव में, तो मैं बेस्ट ये करता हूँ कि जो सब्जियां उगाता है ऑर्गेनिक, गेहूं है चावल नहीं, इसके अलावा दालें, फल, सब्जी, तो आसपास की गेटेड कम्युनिटीज वहाँ पे मैं उनका एमओयू साइन अप करा देता हूँ। तो जो फार्मर्स हैं वो अपना जो प्रोड्यूस जिन्होंने खेत में उगाया सुबह ले जाके शाम तक वहाँ बेच देते हैं, डायरेक्ट फार्म टू फैमिली। बहुत सक्सेसफुल रहा है अब तक ये। जो बेचारा किसान जैविक खेती करते हुए भी अपनी अपनी उपज को कहीं बेच नहीं पा रहा था, वो 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो ढूंढ रहा था, मैंने उसको 60 रुपए किलो का दाम दिलाया डायरेक्ट, क्योंकि उस वाकई में ऑर्गेनिक कर रहा है वो। उसके पास भारत सरकार की जो एक सर्टिफिकेशन होती है, वो मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा कि आपका ऑर्गेनिक है, नहीं, मिट्टी की सर्टिफिकेशन जो सॉइल क्वालिटी होती है उसका सर्टिफिकेशन होता है कृषि विज्ञान केंद्र में, कि आपकी खेत की मिट्टी में कितना कार्बन है। तो उससे इन किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, वो डायरेक्ट सेल परचेज कर रहे हैं, मतलब अपना अपना उपज ले जाते हैं और एमओयू में भेज देते हैं। साइकिल ने ये काम किया है, बहुत सफलता मिली है इससे। हम सरसों, आप जानते होंगे आज देश भर में सरसों के तेल की कितना दाम हो रहा है, 200 लीटर 150 लीटर, वो भी मिलावट बहुत होती है। तो हेल्प जो किसान सरसों उगाता है, मस्टर्ड, मैं कहता हूँ आप इसको पिसवा लो, नो, ब्रिंग द नेक्स्ट एडिशन, वैल्यू एडिशन ऑयल, उसको डायरेक्टली परचेज करो, सॉरी बेचो उसको डायरेक्ट कस्टमर्स को, तो वो भी एक हेल्पफुल अपॉर्चुनिटी, जिससे उनकी इनकम बन जाती है। देखिए किसान परेशान इसलिए है ना, उसकी जमीन बिक रही है, उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो हेल्प देम इन वैल्यू एडिशन, जो कि बाकी कंपनीज कर रही हैं। So this is the work I am doing. Apart from this policy advocacy, this mapping work and correspondence with the government, मैंने जो बड़ी पॉलिसीज दिल्ली विलेजेस के लेवल पे बनाई हैं, जिसके लिए मैं पिछले 3-4 साल से दिल्ली गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस में बातचीत कर रहा हूँ कि आप प्लीज ये रिफॉर्म्स लेके आइए जो फार्मर्स को हेल्प करेंगे। क्योंकि आप सबको शायद पता ना हो, देश भर के गाँव, चाहे वो गुजरात का हो कहीं भी हो, किसान अपनी जमीन पे लोन नहीं ले पाता। जो उसकी रेजिडेंशियल एरिया है या फिर उसका इवन उसकी जो फार्मलैंड है, बहुत कम मिलता है उसको, उसकी मतलब उसको अपना ट्रैक्टर के अपनी जमीन तो गिरवी रखनी पड़ती, तब जाके उसको 2-4 लाख रुपए लोन दे देंगे, और 2-4 लाख से तो आजकल बात ही नहीं बनती किसी काम में। सो प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड दिस वन पॉलिसी, इसका नाम है स्वामित्व योजना। ड्रोन, यूजिंग अ ड्रोन यू मैप द विलेज एरिया, द आबादी एरिया, and the 100 odd families or 400 odd families who are living in the village, you give them individual certification that is known as conclusive titling, कि आपका इतना सा एरिया है गांव में, मेरा इतना है, सबका अलग अलग, उसकी मार्किंग दे दीजिए ताकि वो बैंकेबल हो जाए प्रॉपर्टीज। तो वो एक नीति है जिसमें मैंने अपनी डिजिटेशन भी की थी, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी नेशनल लॉ स्कूल पे, और इसको मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैंने इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और जो भी व्यक्ति किसी अगर गुजरात में, मध्य प्रदेश में इस मैप्स को उसको देख के लगता है उनके बच्चों के लिए, क्योंकि गांव में अगर कोई रह रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा देखने में अपना गांव इस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ। हेल्पफुल भी है काफी, कि जमीन उनको नहीं मिल रही है, उनको समझ नहीं आ रहा उनके गांव में क्या चीज कैसे ला सकते हैं। तो ये एक लीगल वे है, एक राइट्स वाला वे है, अच्छी अप्रोच है। इसी के साथ मैं अगर कोई सवाल पूछना चाहेगा तो मैं बताना चाहूंगा, बट फिलहाल ओवर टू यू आदिल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने समय दिया। थैंक यू पारस। जो आप काम कर रहे हो वो इट्स नॉट इजी वर्क टू बी डन, दिस इज नॉट, आई मीन काफ़ी डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्क होते हैं, जो हम थोड़ी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, फैमिली लेवल पे करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करते हैं। जो आपने लिया है, लाइक व्हाट द चैलेंज दैट यू हैव टेकन अप ऑफ
really working with larger communities, village communities, and then sort of negotiating with government agencies, the development, all the people who are for the mainstream idea of development. So I think this is not easy work. So I think I would like to congratulate you for your effort, and hopefully more people will see value in धन्यवाद, thank the you. work that you're doing. So thank you, Paras. Yeah. Actually, Adil has taken all my words, what I wanted to say. So really, congratulations, and like more energy to you to continue doing what you're doing. All right. From somebody who is living in the periphery of cities and working with the authorities and major stakeholders there, हम लोग जाते हैं मानवेंद्र की तरफ, जो शहर छोड़ के भाग गए. वो 3-4 साल या 5 साल पहले उन्हें लगा हमसे ना हो पाए भैया, हम नहीं रह पाएंगे शहर में, तो वो पहाड़ों की तरफ चले गए. एंड he's been working from there, working in afforestation, working in community forest creation. I think abhi he's primarily working with Miyawaki, creating Miyawaki forests all across the country. So तो वो आते हैं, बाहर आते हैं पहाड़ से, जंगल उगाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं अपने पहाड़ में. So I think we are happy to have him here somewhere near Jaipur. तो मान, आप बताइए अपने जर्नी के बारे में. काफी आपका ड्रामेटिक भी जर्नी रहा है. I have known you personally. So please go ahead, मान. मानवेंद्र, आपने पीपीटी अभी तक खत्म नहीं किया क्या? वो तो आपको पहले ही कर देना था. मान, You're on mute, Man. हाय, मैं आ गई मेरे पास. हाँ ठीक है, चलो अच्छा है. हाँ अभी मैं करता है ना, शेयर प्रेजेंटेशन भी शेयर करता है और मैं अपने आप के बारे में बताता है. तो मानवेंद्र हूँ मैं भूमि का फर्स्ट बैच से हूँ. तो जब पहली बार मेरी पैदाइशी राजस्थान की है और मेरे पिताजी फौज में थे, तो फिर वो हिंदुस्तान घूमे उनके साथ. और जब कॉलेज में आया तो फिर आ गए कॉलेज में, कैसा है पता नहीं चल रहा ना, वो भागते दौड़ते, वो सोचता नहीं है कोई. स्कूल निकल जाता है, अच्छा है, कंपटीशन एग्ज़ाम आता है, देना होता है, दे देते हैं, कॉलेज में आ जाता है. नहीं सोचते हैं, शायद पहले 3 साल भी कॉलेज के इंजीनियरिंग के नहीं सोचते हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. पहली बार घर से आज़ादी मिलती है, तो वो आज़ादी का ही मज़ा उठाने में लोग लगे रहते हैं कहीं ना कहीं. एटलीस्ट सबका नहीं, मतलब मेरा तो ये केस था. जब 74 साल आया और जब प्लेसमेंट में बैठने की बारी आई, तब सब लोग जब सोचने लगे कि प्लेसमेंट में बैठना है या फिर आपको हाई स्टडीज़ के लिए जाना है, तब जाके एकदम से रियलाइज़ हुआ, अरे कहाँ फंस गया हूँ मैं, कुछ जाके करना ही नहीं है. और फिर सोचा कि यार सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर ख़त्म करो ये सब कुछ, कहीं नौकरी वोकरी कर लो, थोड़ा बहुत पैसे जमा लो, फिर सोचते रहना, ढूंढते रहना क्या करना है. तो वो बात की जमी नहीं. टू मच बैकग्राउंड नॉइस, राइट? बताने का मेरे को अभी ठीक है, बेटर है, ठीक है, इट्स ऑल राइट. अब ठीक है. हाँ हाँ. तो एक्चुअली बेसिकली मैं अभी थोड़ा गौशाला में हूँ. तो दिस इज़ गौशाला का यही पार्ट है जहाँ पे नेटवर्क मिलता है, कहीं और मैं जाऊँगा तो मिलेगा नहीं मेरे को. तो बेयर विद मी. तो आपका, हाँ, तो फिर रियलाइज हुआ, देन आई स्टार्टेड कॉलिंग अप पीपल एंड आस्किंग देम कि कोई बताओ मुझे, कोई कुछ अलग कर रहा है तो मुझे बताओ. तब ऑल्टरनेटिव के इतना सोचा नहीं था सस्टेनेबिलिटी, कोई भी कुछ अलग कर रहा है. तो एक मेरे मित्र ने मुझे बताया, एक नहीं उस टाइम की मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे बताया अपने एक दोस्त के बारे में कि वो पुणे में बैठ के कहीं स्लम्स में रहते हुए जो कचरे उठाते हैं, कूड़े उठाते हैं, उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनको यूनियन बनाने के लिए. मेरे को बहुत सही लगा. मतलब यार ये तो एकदम अलग चीज़ है, सोचा ही नहीं था कुछ होता है. तो मैं उठ के चले गया वहाँ पे कॉलेज बंक करके, और उनके पास 3-4 दिन रहा, वहाँ पे उनके साथ काम किया. और वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खुश पल थे, सबसे मस्त बिंदास. बहुत खुश था वो 4 दिन. हम लोग सुबह 6 बजे निकलते थे और रात के 12 बजे हम लोग पहुँचते थे वापस घर को. तो
बस पूरे दिन चलते रहते थे, कहीं कोई मिल गया उनसे बात करते थे कि क्यों हमें यूनियन बनानी ज़रूरी है, क्यों हमें इनके हक के लिए लड़नी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंस्पिरेशन आया मेरे को वो देख के, और मैं डिसाइड में था कि कुछ अब अलग ही करना है। वो पहली मेरी शुरुआत थी ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल और सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो फिर मैं भाग गया कॉलेज से। मैं भाग गया तो घर में परेशान लोग कि अब कुछ तो करना होगा तुमको। मैंने सोचा कि मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा, सीखूँगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। पिताजी भी थोड़े डरे हुए थे। तो उनको कहीं उन्होंने देखा कहीं टाइम वो डाउन टू अर्थ में ऐड हो में कॉलेज का। उन्होंने बोला कि ये कॉलेज है और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी है, तो तेरी बात भी मेरी बात भी, तो हम लोग चलो ठीक है भूमि कॉलेज चलते हैं। तो हम लोग आ गए भूमि कॉलेज। और आई थिंक काफ़ी लाइफ चेंजिंग था। क्यों था? क्योंकि ना अक्सर हम लोग जो इस रास्ते पे निकलते हैं ना, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम अकेले रहते हैं, कि घर वाले नहीं समझते हैं प्लीज़। ज़्यादातर केसेस में जो मैं जानता हूँ, घर वाले इनको समझ में नहीं आता है कि बच्चा पागल हो गया है, अच्छी खासी लाइफ को छोड़ के, कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के कहीं अंधकार में कूद रहा है। नहीं आता है उनको समझ में। अ, आपके दोस्त लोग सब एकदम मेन स्ट्रीम में चले जा रहे हैं, उसी रेस में दौड़े जा रहे हैं, और आप एकदम से रुक गए तो वो आगे चल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, तो उनसे भी कहीं न कहीं जुड़ाव टूट जाता है। तो काफ़ी एक अकेलापन सा बहुत महसूस होता है, और सोच में नहीं आता कि किससे बात करें, कैसे जुड़ें, कौन हमें सलाह दे सकता है, कौन एक रास्ता दिखा सकता है, नहीं तो कोई हमारे साथ चल सकता है। जब मैं भूमि कॉलेज में आया ना, पहली बार जाके मुझे वो समूह मिला, जो कि एकदम से, जो मैं हमेशा से एकदम सबसे अलग हुआ करता था कि यार मुझे जैसे सोच का कोई नहीं है, जैसे भूमि कॉलेज में तो सब हमारे जैसे ही हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ और मैं अजीब भी नहीं हूँ, है ना, मैं बहुत नॉर्मल हूँ। तो बहुत बहुत हिम्मत मिलती है। आप उस माहौल में रहते हो, आप इंटरेक्शन करते हो, आप आइडियाज़ बनाते हो, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हर कोई आप जैसा कुछ अलग चाह में निकला हुआ है। आप वही एक भाषा बोलते हो, दिल की भाषा बोलते हो। काफ़ी मुझे लगा कि काफ़ी वहाँ पे हिम्मत हुई, और अब मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, देखिए क्या भी है। और हाँ, तो हम लोग भूमि कॉलेज पहुँच गए हम लोग, तो काफ़ी वहाँ पे साथी लोग थे। भूमि कॉलेज के फ़ोटोग्राफ है वो राइट में मैं हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा, कई प्रभावी लोगों से हम लोग वहाँ पे मिले, जिन्होंने एक अलग नज़रिया बताया ज़िंदगी का। ये सतीश कुमार जी हैं, तो उनको चलना बहुत पसंद था, और उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं जब काम करने लगा तो मैं अपने ऑफिस से घर 11 किलोमीटर रोज़ पैदल जाने लगा एक टाइम पे। तो हाँ, उसके बाद कुछ उसकी बहुत खूबसूरत चीज़ थी प्रोजेक्ट्स का, जो एक स्पेस था उन्होंने प्रोवाइड किया था कि ना प्रोजेक्ट भी साथ में करिए। अलग अलग हम लोग इंटर्नशिप करते थे। तो ये मैं काइगल करके एक जगह है जहाँ पे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया है। तो अ, वहाँ पे आपका उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था काइगल करके आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे एक महीने उनके पास था, गांव के बच्चों के साथ मैंने काम किया, और खुश था, मज़ा आता था। हम लोगों ने वहाँ पे, मैं वहाँ पे एक सांप था, उसको मैंने अपनी गोद ले लिया था, जो कि रेस्क्यू किया गया था एक छोटा सा। उसको मैंने जल्दी वापस छोड़ दिया था, पर उसका नाम बाबा था। और इसके लिए रोज़ शाम को, मैं रोज़ तो नहीं खाता था, 4 दिन में एक बार खाता था ये। हर 4 दिन में एक बार छिपकली लेके आते थे जंगल से, और उसको खिलाते थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब कभी मैं सोचा भी नहीं था मैं एक्सपीरियंस करूँगा, पर ये सब करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि ना लाइफ में ना, कहाँ जाना है, क्या करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेने का है। मतलब जितना भी आप सोच सकते हो, जितना आपको देख सकता है, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाते रहोगे ना, अपने आप आगे वाले कदमों में रोशनी आती रहती है। तो भूमि कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं सोचा चलो अब मेरे को पक्का है दिमाग में, मेरे को खेती करने का है। तो मैं अपने गांव आ गया, पुश्तैनी गांव, राजस्थान में, और मैंने सोचा यहाँ पे खेती करेंगे। तो ये हमारा वहाँ पे फार्म हाउस है। पर वहाँ पे वापस से जैसे एकदम से उस सिस्टम में वापस से मैंने काफ़ी वो प्रेशर फील किया, ज़िंदगी खराब कर दी, क्योंकि घर को तब भी समझ में नहीं आता था। ऑल सडन आपका जहाँ पे बहुत ऑल एक्सेप्टिंग है, ऑल एम्ब्रेसिंग एनवायरनमेंट है भूमि में, अब वापस निकल के आप वही ट्रेडिशनल सिस्टम चल जाते, तो बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। मतलब हैट्स ऑफ टू
लाइक हमारे बाकी दोनों स्पीकर्स यहाँ पे जिन्होंने वापस अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स में गए और सब कुछ संभाला, मतलब मुझसे नहीं हो पाया। तो मैं 6 महीने बाद आई क्रैक्ट, आई लाइक आई कैन फार्म इन एटलीस्ट मेरे खेत में तो नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने घर में कहीं और कर सकता हूँ। और एक ऑर्गेनाइजेशन थी ग्रीन पीस करके, जो कि अलग अलग पर्यावरण के मुद्दों पे काम करते हैं एडवोकेसी लेवल पे। तो मैंने उनको ज्वाइन किया एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैंपेनर। तो खासकर उसमें मेरा मेन फोकस था आपका जीएम सीड्स, जो कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं। जो आपके जीन्स जो होते हैं डीएनए, तो फसलों के बीजों में वो जीन्स को बदल दिया जाता है, जिससे उनमें थोड़ी और अलग क्वालिटीज़ आ जाती हैं, और वो इंसान द्वारा होता है। तो उससे काफ़ी खतरा है हम लोग, क्योंकि हमको मालूम नहीं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है उसके, उसकी टेस्टिंग ज़्यादा हुई नहीं है। तो हम लोगों ने खूब कैंपेन किया कि उस वक्त सरकारें बहुत उन बीजों को लाना चाहती थी, खासकर हमारे खाद्य फसलों में लाना चाहती थी। उसके लिए हमने खूब अलग अलग कैंपेन किए। तो ये एक पोस्टर एक जो हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उस पोस्टर का है, जो कि हमने जनता मंत्र में किया था। तो 3 साल बहुत दुनिया घूमी, अलग अलग मुद्दों पे काम किया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के मुद्दों पे काम किया। कैसे अगर आपका कोई कोई एक चीज़ है, जो बदलाव है आप चाहते हैं दुनिया में, उस बदलाव को, ये बदलाव है पर उसकी जो कहानी है बदलाव की, उसको आप कैसे पहचानें, कैसे उसको ट्रेस बैक करें आप, कैसे कैंपेन बनाएं कि लोगों को कैसे उसके लिए एकत्रित करें। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छी पहचान हुई है, वो सब सीखने को मिला। और जब काफ़ी हो गए थे 3-4 साल, में थक गया था और मैं सोचा अब कुछ बहुत संघर्ष कर लिए हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली है, अब थोड़ी शांति चाहिए, तो मैं उठ के पहाड़ों में आ गया। तो एक प्यारा सा घर है जहाँ पे मैं रहा करता था, पत्थर का घर है, ना बिजली थी यहाँ पे, ना पानी का कोई कनेक्शन, बस आगे 1-2 रूम थे। तो काफ़ी अच्छा था वहाँ पे रहना, क्योंकि पहली बार मैं, हमेशा से नेचर से तो सबको प्यार रहता है, मुझे भी बहुत था, पर सही में अपने आप को कभी नेचर में डाला नहीं था। जब घर में बिजली नहीं थी तब जाके पता चला कि चंद्रमा कभी कभी जल्दी उगता है, कभी कभी लेट उठता है, ये तो मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं मालूम था। आ, डर भी लगा था शुरू शुरू में जंगल में क्या क्या आवाज़ें आती हैं, क्योंकि आसपास अब कोई रहने वाला नहीं था, अगला घर भी खाली था। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टाइम था, जब हम लोग जंगल से लकड़ी लाया करते थे, 1 किलोमीटर से पानी लेके आते थे। तो कई ये चीज़ें हैं जो कि हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक दोस्त था दिल्ली में, तो मैं यहाँ पे 5 महीने रहने के बाद, यहाँ पे मैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं 5 महीने रहने के बाद जब मैं वापस दिल्ली में आया, उनके पास रुकने के लिए, और मेरे को अभी भी याद है जब मैंने टैप खोला, मैं कितना आश्चर्यचकित रह गया था कि यार यहाँ पे मतलब नल खोलो और पानी आता है। और इट वाज सच अ थिंग वी यूज्ड टू टेक फॉर ग्रांटेड ना, कि यार ऐसे ही होता है पहले। और जब रोज़ सुबह 1 किलोमीटर चल के पानी लेके आते हैं, तो आपको पानी की कीमत पता चलती है कि कितना कीमती पानी है। मेरे से अभी भी नहीं होता, आज की तारीख में से ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो दिन देखे हैं मैंने। अ, तो ये था यहाँ पे, तो मैं ऐसे कि कितनी चीज़ों के लिए हम लोग, हमारी लकड़ियों के लिए जंगलों पे डिपेंडेंट है हम लोग, हमारे पानी के लिए, क्योंकि बोर प्लेन्स में तो क्या होता है, आपने अंडरग्राउंड बोर डाल दिया, जिस दिन आपने ज़मीन से नीचे चल के पानी लेने के लिए, उस दिन आप अगली पीढ़ी से पानी आप उधार ले रहे हो। तो हम लोगों ने पहले जब उधार लेना चालू किया, तब 100 फीट में पानी आता था बोरवेल में, ठीक है, आपने अगली पीढ़ी का हक में लिया है वो, फिर 200, 500, 1000 फुट में पानी जाता है, और ये पानी है जो आप अगली पीढ़ी से उधार ले रहे हैं। और इसको रिप्लेनिश करने में पता नहीं कई साल लग जाएंगे वापस से, और हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो अगर आज भी हम लोग खेती करते हैं ग्राउंड वाटर से, या फिर हमारे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं कि नहीं यार हमारे पास बहुत पानी है यहाँ पे, तो एक बार सोचिए ज़रा कि आपके पास सही में पानी है। अगर आप ग्राउंड वाटर में पहुँच चुके हैं, तो आप ऑलरेडी आप नेगेटिव बैलेंस में हैं। तो हमने सोचा कि पहाड़ों में तो एटलीस्ट लोग उधार भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका बोरवेल की कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता है, आपके पहाड़ में आप नहीं लगा सकते हैं। और वहाँ पे जो पानी आता है वो सिर्फ जंगलों से आता है, जो कि एक टाइम पे हर जगह यही होता था। हर जगह जंगलों में अलग अलग स्रोत होते थे जिनसे पानी निकल के आता था, ग्राउंड वाटर। तो हमारे क्योंकि प्लेन्स में सब जगह जंगल खत्म हो गए हैं और साफ पानी सूख चुका है, तो हमने सोचा कि पहाड़ों में ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमें जंगलों को वापस बचाना है। तो
ये सोचते हुए हमने पहले बचाने में काम किया और फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम उस स्टेज में पहुँच चुके हैं जब बचाना भी काफ़ी नहीं है। वो स्टेज बहुत पहले जा चुका है। अब हमको एक्टिवली बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बनाएँगे तो जो बचे हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएँगे। फिर हम लोगों ने धीरे-धीरे अलग-अलग चीज़ें ट्राई किया, अलग-अलग मेथड्स ट्राई किया और एक मेथड जो हाँ, तो ये मैं हूँ कि पहाड़ के जंगल हैं, तो हम लोगों ने जंगलों में काम करना चालू किया। ये मुझे ग्लोबल लॉरेट फेलोशिप मिला था। सो इट्स अ रिकॉग्निशन फॉर 20 youth across the world who are working on social leadership and change. तो उसके लिए 2018 में ओके हाँ जंगल तो हमने एक्टिवली जंगल लगाना चालू किया। आपका अलग अलग जगह जाके हमने गांव वालों के साथ लगाए, हमने वन पंचायतों के साथ लगाए, हमने सरकारों के साथ लगाया, हमने एक डिस्ट्रिक्ट में बायोडाइवर्सिटी पार्क क्रिएट किया था, जिससे लोग जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा जंगलों को बेहतर समझेंगे, जितना समझेंगे उतना ज़्यादा इसकी फिक्र करेंगे। तो वो एक प्रोजेक्ट था और ये मेरा पहला जंगल है। सो ये हमने मियावाकी मेथड से किया है। तो अब तो ये जंगल बहुत पागल हो चुका है, मतलब बहुत ऊंचा जा चुका है, मतलब जितना आपको अभी दिख रहा है सेकंड वाली फोटोग्राफ में तो 1 साल का था और अभी से एटलीस्ट 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स तक ऊपर जा चुका है वो जंगल। ये जंगल इसलिए तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि हम इनको एक समुदाय की तरह लगाते हैं। अक्सर हम लोग जब पेड़ लगाने की बात करते हैं कि नहीं चलो हम पेड़ लगाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि यार उसको अकेले अकेले अलग अलग गड्ढों में दूर दूर हम लोग लगा देते हैं। पर हम लोग हैं, इंसान हैं, अगर हमको ऐसे अलग अलग एक कमरे में बंद कर देंगे सबको तो कैसा रहेगा? सेम पेड़ों के साथ होता है। पेड़ लोग जो जब जंगल में सभी पेड़ आपस में सब जितने भी उत्पादन है अपने आपस में बांटते हैं, जितने भी अपने संसाधन हैं उनको आपस में बांटते हैं, अपनी ऊर्जा से जो खाना बनता है वो कीड़ों को भी देते हैं, ज़मीन में बैक्टीरिया को भी देते हैं, फंगस को भी देते हैं। उनका पूरा एक समुदाय है जो ये सब एक साथ काम करते हैं। अगर हम लोगों को आके अलग अलग लगा देना तो फिर वही हो गया, इंसानों को इससे अलग अलग डाल दिया हमने कमरे में। तो ये प्रणाली हमने सीखी और मियावाकी मेथड को हमने सीखा और इसी कारण जब हम लोग इस मेथड से जंगल लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं वो। क्योंकि उनका एक दूसरे का साथ मिलता है, एक टीम वर्क रहता है। अब इस मेथड से मैं पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह, क्योंकि आप क्या करते हो, आप कॉन्टेक्चुअलाइज करते हो इसमें कि ना उस जगह के पुराने जंगल कैसे हुआ करते थे, तो राजस्थान के पुराने जंगल कैसे हुआ करते थे। तो उसमें आप विदेशी पौधे बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप उसमें बोलेगा कोई गुलमोहर लगाना, नहीं भैया गुलमोहर कश्मीर का है। नीम लगाए, नहीं भैया नीम आपका म्यांमार का है ना। आप यहाँ के बकेन लगाइए, खिजड़ी लगाइए, बबूल लगाइए जो यहाँ के एक मूल हैं। आप कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ के एग्जैक्टली जो पुराने पेड़ हैं, पुराने जंगल हैं, तो वो कैसे लगाएंगे। तो मैं अब अलग अलग जगह जाके सब जंगल लगाता हूँ और मेरे को सबसे बड़ा शौक है सिखाने में। तो मैं गिफ्ट कल्चर में बहुत बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि अ, आपके पास कुछ है, कुछ खास है तो आप ज़रूर दुनिया में उसको दीजिए और ऐसे दीजिए कि सामने वाला अगर उसको सही में बहुत वैल्यू करता है तो लोग भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और कुछ ना कुछ आपको काफ़ी कुछ मिलता है। तो मैं गिफ्ट कल्चर में ऑनलाइन सिखाता हूँ कि जंगलों का खेल कैसे खेलें, कैसे इनको लगाएं, कैसे बनाएं और काफ़ी मज़ा आता है उसमें। मेरे को भी आता है, शायद सामने वालों को भी आता ही होगा क्योंकि लोग आते रहते हैं। हाँ, तो ये तो पैशन है। इस साल 2 स्टूडेंट्स ने लगाए मेरे जंगल। आई थिंक फॉर मी इट्स अनदर अचीवमेंट ना, क्योंकि मैं अपने आप में सीमित हूँ, पर जब लोग और लगाते हैं तो काफ़ी कुछ होता है। फिर हम कुछ पागल लोगों का ग्रुप है, हम लोग अपने आप को कीड़े बुलाते हैं। तो हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो ये एक पोस्टर है हमारे एक चिट चैट फंड का, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे पास पैसे हैं सब लोग धीरे धीरे एक फंड में डालते रहते हैं और जिसको जब भी ज़रूरत होती है तो वो उसमें से पैसे निकाल सकता है। तो आपको कुछ ये नहीं है कि आप उधार ले रहे हो या इंटरेस्ट है, कुछ भी है। पर हमने रियलाइज़ किया कि हमारा जो एक समुदाय है उसमें कभी किसी के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, कभी किसी के पास कम आ रहे हैं, तो क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हम बाहर एक्सटर्नल लोगों के लिए डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग क्या अपने रिसोर्सेज आपस में शेयर कर सकते हैं कि अभी हमारे पास पैसा है तो आप मैं ज़्यादा वो बांटूँ, किसी के पास अभी टाइम है तो मैं वो ज़्यादा अपना दूँ, बाकियों को ऐसे हेल्प आउट करूँ। तो उसमें एक चिट चैट है, देन वी हैव उसमें सील टैंक का एक हम लोग प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग प्रोग्राम करते हैं जो कि अभी तक मेरे घर वाले समझ नहीं पाए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो ठीक है, घर वाले हैं।
इतना ही कुछ था मेरे पास बताने के लिए। बाकी सवाल हों तो ज़रूर पूछिएगा बाद में, और उस पे हम चर्चा करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद मानवेंद्र। आपने आपने दुनिया को भी हिला दिया और वीडियो को भी काफी हिलाया है आपके प्रेजेंटेशन के टाइम। थैंक यू फॉर दैट अर्थ शैटरिंग प्रेजेंटेशन। थैंक यू। हाँ, तो हमने The real 20-25 story of really the journey of hero's journey, what I think Hema was talking about, and so many things you have done. Hats off. yeah, lots of work and lots of work yet to be done. तो हमने सोचा 15-20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स, या अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है, कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करना है, वो कर सकते हैं। या लगता है अगर स्पीकर्स को लगा कि वो कोई पार्ट छूट गया तो दे कैन ऐड दैट एज वेल, एनी एस्पेक्ट दैट दे लेफ्ट। सो या, द फ्लोर इज ओपन। आप प्लीज, यू कैन गो अहेड एंड शेयर। Yeah, and you can, Manvinder will be happy if you contribute to the chit chat fund also, I'm assuming, apart from taking the thank yous. So if no one is going, I had one question for Paras, but I would wait if anyone else wants to go ahead. हाँ, anyone can share perspectives, thank yous, कुछ भी चले। नहीं, पारस से मुझे पूछना था कि because the kind of work you are doing, Paras involves like the system, the government, and also the corporations. So at one level, yeah, it is a very, very challenging thing that you have taken up. But also from my location, how I see, I can see a lot of risk there. So how do you, I mean, how are you facing that? How are you keeping yourself kind of safe, I would say? अच्छा सवाल है फराह मेरे लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आई बिलोंग टू वन ऑफ द विलेजेस इन दिल्ली। सो अगर सिस्टम जैसा मुझसे बर्ताव करता है, मैं वैसा बर्ताव सिस्टम से करता हूँ। इतना ही बताना चाहूँगा। एक केस डाला था मैंने 3 साल पहले। देखिए, दिल्ली में ना पार्क्स हैं बहुत बड़े बड़े, ऐसे बेंगलोर में भी होते होंगे, आपने देखा होगा। इन पार्क्स का ना कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है। शादी ब्याह कर, जो शादी या मैरिज सेरेमनीज करा देंगे, पॉलिटिकल रैलीज करा देंगे। ये पार्क्स हैं ओपन स्पेसेस बच्चों के खेलने के लिए, हमारे बड़े बुजुर्ग को घूमने के लिए। सो इट्स लाइक अ ओपन स्पेस। जैसे आप कबन पार्क देखते हैं, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े पार्क दिल्ली में भी हैं। बट इनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाता था। मैं बचपन से देख रहा था, क्योंकि मेरे घर के सामने 5 एकड़ का पार्क है, 5 एकर्स, बिग एरिया। और जब मैंने आरटीआई लगा के जानना चाहा कि इसका प्रोसीजर क्या है, जब मुझे ये पता चला कि सब इलीगल है, तो मैंने 1 साल तक सिर्फ आरटीआई लगाया। और यू नो द वे वी डू कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड द लूप होल्स ऑफ द सिस्टम, उनको निकाला। शुरू में उन्होंने जवाब नहीं दिया, हमने इंतजार किया 1 महीना, 2, 3, 4, 6, 9 महीने। फाइनली उनको मुझे जवाब देना पड़ा। जब जवाब में मुझे ये लिख के दिया कि एक पार्क से उन लोगों ने 4-5 करोड़ रुपए कमाए, शादियां ये सब करा के, और सब इलीगली। लैंड यूज पार्क है, बट पार्क को उन्होंने और कुछ बना दिया। तो मैं एनजीटी में चला गया, 2 साल लगे और मैंने वो केस जीता। अब दिल्ली के पार्कों में कहीं भी शादियां या फिर कुछ सब बैंड है। कारण क्या था कि सी आई एम अ नेटिव ऑफ दिल्ली। दिस इज, यू नो, दिल्ली ग्रू ऑन आवर लैंड। इफ आई डोंट आस्क क्वेश्चन देन हु विल। तो सिस्टम, तो मैं समझता हूँ अब तक तो हमसे सेफ था। अब सिस्टम के ऊपर है वो हमसे कब तक सेफ रहेगा। तो आई अंडरस्टैंड द प्रिकॉशंस यू नीड टू कीप, बट यू नो आई बिलोंग टू दिल्ली। यू नो, आप मैंने बताया दिल्ली में इतने सारे विलेजेस हैं। अब आप महसूस करो, यू नो, इन्वेजन्स, you know, these wars, everything was fought in this whole land.
सो ये जो गांव वाले यहाँ रह गए, जो विलेजर्स, ये कैसे रह गए होंगे? They knew how to defend themselves. No? So it's all about the day you realize that you are losing something and you have to defend yourself. So the tweak, how do you tweak the system? How do you break the system? Everything comes automatically to you because it isn't there in the blood. I'm not a violent person. I may look like one, but when you are cornered, then there's nothing else. You have to do what it's important. जैसे मैंने आपको बताया, एक केस जीता है मैंने. इतने सालों से मीडिया में there news are like illegal parks are used for that. Nobody has a sense. The academia failed, the media failed. You call about scholars, everybody failed to understand. You just had to ask a basic question. The park was meant for the children and the every other community in Delhi or a city, for the elders to walk on. उनको जगह चाहिए घूमने फिरने के लिए सुबह, just to go for a walk or a run, sit, chat. आपने वो जगह छीन ली लोगों से. वो तो लीगल ही नहीं है. जब सिस्टम लीगल नहीं था तो फिर हम आवाज नहीं उठाएंगे, और आवाज उठाएंगे तो जीतेंगे. I believe it's all about how you argue and how you present your case. यही मैंने नेशनल लॉ स्कूल जैसे जो ये बड़े बड़े संस्थान है जहाँ सिखाया जाता है कि you learn how to talk. So I believe I just talked well and I won. अब क्या कहूँ अपने बारे में? अखबार में है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं लोग. और ये मैंने अपना केस अपने नाम से नहीं डाला था, RWA बुढ़ेला, तो इन्वॉल्व किया लोगों को कि आप भी तो जोड़ो. आप ही फाइट नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि सिस्टम क्या करता है, 10-15 लोगों के साइन ले लेते हैं. ये लोग चाहते हैं यहाँ पे शादियां हो. जब मैंने उन लोगों की संस्था को पकड़ लिया, अपने साथ ले लिया, तो आई नेवर लेफ्ट एनी अपॉर्चुनिटी फॉर द सिस्टम टू क्रॉस एग्जामिन और जस्ट क्रॉस फायर समथिंग फॉर मी. दैट इज इट. इट टुक मी 3 years. अदरवाइज तो एक दिन का काम है. सो that's how I keep myself safe. I understand the system first, understand the loopholes. I point the इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जो ये लोग शादियां करते थे, टेंट वाले जो बोलते हैं माफिया वाफिया, घर पे आया करते थे धमकी वमकी देने के लिए. शुरू में उनको पता नहीं था मैं कौन हूं, उनको लगा ये कोई और ही है. जब उनको पता चला मैं हूं तो फिर वो चले गए वापसी. सो दिस इज हाउ इट इज डन. दिस इज द रियलिटी. हम क्या बोल सकते हैं. बैंगलोर में जैसे वो वेस्ट मैनेजमेंट, आपको याद होगा, द रीजन आई एम डूइंग सो मच फॉर द विलेजेस, इनफैक्ट आई गिव क्रेडिट टू बेंगलुरु सिटी, बिकॉज बेंगलोर की सिटी में एक गाँव है मंडूर. आपको तो सब याद होगा. 2012 की बात है जब ये गांव में पूरे शहर बेंगलोर का जो कचरा है, इट वाज डम्प्ड इन मंडूर. इट इज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलोर समवेयर. अब तो सिटी लिमिट्स में ही है. बट आई रिमेंबर द हिंदू had done a story, a full 1-page story about Mandur, that how Mandur is suffering because all the garbage of Bangalore is thrown in that village. कैंसर हो जाता है ना, लीचेड हो जाता है नीचे सब कुछ. दिस इज समथिंग दिल्ली में अभी किसी गांव में नहीं हुआ आज तक कि किसी दिल्ली के गांव का कचरा किसी गांव में डाल दिया, क्योंकि पीपल उलट झगड़ते हैं. जो भी है तरीका है उनके अपने अपने झंडे के जीतने के. अदरवाइज गवर्नमेंट हैज प्लान द सेम थिंग. इनको खत्ता बोलते हैं हिंदी में, कि कूड़ा करकट का वहां लगा दो आप. अभी भी मास्टर प्लान में 2 ऐसे गांव हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है. सी इन द मास्टर प्लान गवर्नमेंट इज रिटन, हम लैंडफिल नहीं बनाएंगे, हम बड़े बड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स नहीं बनाएंगे. पैराग्राफ क्लोज. 10 या 15 पेजेस बार आता है, इस गांव में इतना बड़ा प्लांट लगेगा. सो जब तक उन गांव वालों को पता चलता कि लैंड यूज बन जाता, तो इट वुड हैव बीन नोटिफाइड. सो लकीली अब मेरा प्रेजेंस इतना है कि मैंने उन गांव वालों को पहले बताया इस मास्टर प्लान के बारे में, सजेशंस और ऑब्जेक्शन भेजे. अभी से नहीं, 1 साल पहले से, बिकॉज आई न्यू दिस इज कमिंग अप. सो आई जस्ट मेड पीपल फाइट फॉर द राइट कॉज एंड हेल्प देम लर्न how to defend themselves legally and other ways which are part of the system. Any other Amazing. question? Amazing. एक सुझाव है मेरा, क्योंकि मैं भूमि का काम देख रहा हूँ काफी समय से और आदिल से हमारी बातचीत होती रहती है. देखिए, आपके शहर में मैंने नहीं देखा बेंगलोर में कोई व्यक्ति इस ग्राम या गुजरात में भी अगर कोई इसको वैल्यू करता है, इस मैपिंग को बच्चों को सिखाया जा सकता है स्कूल्स में. अपने गांव को जो रूरल यूथ को अगर आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही हो तो तरीका क्या है? यू मोटिवेट देम इन द राइट सेंस. नो, अनलेस दे वैल्यू देयर ओन नेटिव, विल दे एवर डू एनीथिंग इन सस्टेनेबल द होल कम्युनिटी. अगर वो अपने ही गांव में पेड़ नहीं लगाना चाहते, अपने ही गांव की सड़कों को सही नहीं रखना चाहते, तो वो बाहर क्या करेंगे? फिर तो ऐसा होगा एक पीढ़ी बाद, 1 जनरेशन आफ्टर, वो अमेरिका से जब वापस आएंगे तब कुछ करने का मन करेगा उनका. तब तक तो साइकिल ही खत्म हो जाएगी. वो दिस इज द रीजन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नेम इज साइकिल. 2 साल बाद मैंने जब महसूस किया, इट्स अ विशियस साइकिल. एक गांव को बर्बाद करते हैं, फिर दूसरे पे नजर आती है. तो मेरा गांव वो है जिसने 50 साल में इतना कुछ झेल लिया, और अब दिल्ली के जो गांव है, अब रूरल विलेजेस जो है डिक्लेयर्ड हैं, ये मेरी बात इसलिए सुनते हैं कि मैं इनको बताता हूँ, ये देखो
ये गांव है 50 साल पहले लिया था सरकार ने शहरीकरण के नाम पे, आज इसकी हालत देख लो, सर्विसेज नहीं है यहाँ पे। ऐसे 135 गांव हैं और बाकी 223 है जहाँ पे ये शहरीकरण होना है। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। नो, जब हम बात करते हैं वेस्ट को कॉपी नहीं करना है, तो उसका एविडेंस क्या है? ये एविडेंस है कि वेस्ट ने बोला ये लगा दो, गवर्नमेंट किया ना वेस्ट जैसा अर्बनाइजेशन, कुछ भी नहीं हुआ। लंडन also has urban villages. In fact, Portugal and other European cities have these, but they have turned it into a heritage, rural tourism. वो एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया, कम्युनिटीज को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गए, so everybody was on the same page, all the stakeholders moved, no? सब ने एक साथ तरक्की की। इंडिया में उल्टा है, गाँव को पीछे छोड़ दे जाते हैं। तो जो क्राइम बेल्ट है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, दिल्ली में 26,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ये रूरल विलेजेस की लैंड को लेके। ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। इसी वजह से मैं सिस्टम में आई एम एबल टू डू व्हाट आई कैन रियली डू, क्योंकि सिस्टम के लूप होल्स दिखाने पड़ते हैं ना। अब दिल्ली में जो लोग काम करने आ रहे हैं वो भी तो किसी गांव से आ रहे हैं। बहुत से लोग, कोई चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर है या फिर कोई लोअर ब्यूरोक्रेसी में है, जब तक उसको ये बताया नहीं जाएगा कि देखो गलत क्या हो रहा है, आपने यहाँ नहीं रोका तो बाकी गाँव में भी ये होगा, और आप भी किसी गाँव से आ रहे हो तो फिर आपका क्या, आप भी ये सब फेस करोगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है और बाकी सिटीज में, गुजरात में। से मैंने अहमदाबाद के एग्जांपल इसलिए दिया कि मुझे ये बात बड़ी दिल से छू गई थी। मैंने बहुत कोशिश किया उस गांव में लोगों को ढूंढने का। फिर एक जर्नलिस्ट से मैंने नंबर लिया कि सर आपने कोर्ट में केस डाला था? उन्होंने बताया हाँ जी मैंने डाला था। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी यही बताया कि देखिए हमारी पंचायत में डायरेक्ट पैसा आता है, हम क्यों जाएं शहर में हमें रोड में पानी नहीं मिलेगा, कुछ देते हैं नहीं ये लोग। क्योंकि अहमदाबाद बड़ी अच्छी सिटी है, बहुत कम पॉपुलेशन है, अच्छा बिल्कुल प्लानिंग तरीके से है। बट प्रॉब्लम क्या है, वो गांव को लेवल की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी वो जमीन ले जाएंगे। तो जमीन अगर किसानों के हाथ से चलेगी तो उसको सफर करना पड़ता है। और अच्छी, इट वाज, आई बिलीव इट वाज संडे गार्डियन और समवन ओनली इन द इंटरनेशनल मीडिया, माइंड यू। इमेजिन देश के गांव में कुछ हो रहा है, देश की मीडिया ने कुछ लिखा ही नहीं, गांव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी ने लिखा। बहुत अच्छी, मुझे यार 2 साल पहले मैंने पढ़ा था उस बारे में, इस गांव के बारे में। एक गांव हरियाणा में भी है, आप लोग सब जानते होंगे हरियाणा के बारे में, लड़ाक, फाइट्स, क्राइम एंड ऑल दैट, हार्डी पीपल। इमेजिन कीजिए हरियाणा में एक जगह है पानीपत, जहाँ पे पानीपत की वॉर हुई थी। पानीपत जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने भी यही किया। पानीपत से अगला गांव था शिमला मोलाना, उन्होंने कहा कि हम आपकी पंचायत को अबॉलिश कर रहे हैं, आपको सिटी कॉर्पोरेशन मिलेंगे। उस गांव ने प्रोटेस्ट किया, सीएम के पास गए और उन्होंने एक्ट बदलवा दिया। मतलब जो पानीपत डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उनको ये गांव अर्बन लिमिट्स में लेना था, उन्होंने डीनोटिफाई किया उस गांव को, डीनोटिफिकेशन किया। बहुत मुश्किल होता है डीनोटिफिकेशन, इतना आसान नहीं कराना, उन्होंने कराया। तो हरियाणा जैसा मैं बिलीव करता हूँ जहाँ पे लोग फ्यूचर के लिए, मतलब भविष्य के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं, और एज अ कम्युनिटी दे आर एबल टू फाइट फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग। उस गांव ने तो फाइट किया, उसके अगल बगल के गांव ने नहीं किया। पुणे में हम जब देखते हैं रालेगांव, सिद्धि, अन्ना हजारे गांव है, पानी के लिए बहुत कुछ कर दिया। बट आप सोचिए अन्ना हजारे ने तो कर दिया, आसपास के गांव ने क्यों नहीं किया? क्या कारण क्या है? तो दीज आर द इनइक्वालिटीज। अब मेरा तो इनसे लेना लेना है, क्योंकि मैं रहता हूँ ऐसी जगह जहाँ पे एक तरफ रोड के सब कुछ विकसित विकास है, गेटेड कम्युनिटी है, बहुत अच्छा शानदार रोड है, और दूसरी तरफ सुअर घूम रहा है सड़क पे, गाय माता घूम रही है ऐसी प्लास्टिक की थैलियां खा रही हैं। तो हमारा तो जीवन निकला है इसमें 25-30 साल। अब समझ में आ गया है। लकीली आई लर्न गुड। मेरा भूमि में जाना, मैं उम्मीद करता हूँ 2012 की बात है। अगेन जैसे मानव ने बताया, इट वाज ऑल अबाउट एस्केप योर फैमिली। कोई ऐसा कोर्स ढूंढ लो जहाँ घर से थोड़ा दूर जाने को मिल जाए। बट व्हेन आई वाज इन भूमि, आई रिमेंबर, बिकॉज चुपचाप रहना और सब ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि भूमि जो है आपने देखा होगा कहाँ है, बेंगलोर में। महसूस कीजिए ना कितना दूर है, एंड हाउ इट इज, वेयर इट इज। फार्मर्स नहीं कर पाया ये सब कुछ। इट वाज ओनली द लर्नर्ड पीपल हु कुड डू, हु कुड थिंक कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो लोगों को कुछ सिखाएगा। इट कैन रियली गिव बैक, जैसे मानवेंद्र ने कहा गिफ्ट। तो भूमि तो एज अ गिफ्ट है फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। भैया सिखाओ लोगों को सस्टेनेबल लिविंग क्या है। और अच्छी जगह है, अच्छी जमीन है, वो पानी वानी वहाँ पे है, सजा पूरा रोड तक तो 2,500 फुट पे पानी है। तो अब आसपास मैं नहीं जानता भूमि में क्या आसपास क्या बदल चुका है, बट मुझे याद है तो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच था, खाली था। मैं सुबह सुबह उठ के दौड़ लगाता था वहाँ पे, तो मुझे याद है अच्छी तरीके से। सो आई रिमेंबर दैट स्पेस। आई डोंट नो हाउ मच सस्टेनेबल इट इज नाउ, बट वो एक स्पेस ऐसी है, अभी डेवलपमेंट, lot of development has happened now. Development in the name of, name of something, urbanization. I can say कि government City has encroached on us for us now. I'm sorry, who? Has come very close. Who? Yeah. City has come. हाँ वो आने दिया ना, क्योंकि locals are not aware. आप लोग Yeah. privileged I think people तो
अवेयर हैं, हम लोग इतना अवेयर नहीं थे. I think we need Manvendra to come and Paras also to come. grow a forest, and Paras to come and help us with lake restoration and other urban spaces which are being encroached everywhere. Most likely, you know, most importantly, these findings from the revenue records, ये mapping जो है बहुत important है. क्योंकि केरला में जो resort तोड़ा गया, वो सिर्फ इसलिए तोड़ा गया ना, everybody fought with the evidence कि how can you really bring this so-called of construction in the wetland. तो सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया, वो जीता गया. मेरे केस में मैं अपने केस को एनजीटी में जीत इसलिए गया, मैं तो आप लोगों से शेयर भी कर सकता हूँ क्योंकि सब साथी बैठे हुए हैं. देखिए कॉर्पोरेशंस का जो जेई होता है या फिर बड़े जो महकमे हैं, ये 12वीं पास लोग हैं. इनका इतना माइंड ऑफ सेंस नहीं होता कि ये समझ पाए कोर्ट केसेस को. तो मैंने अपना कोर्ट इस तरह से प्रेजेंट कर दिया एनजीटी में कि इनकी नौकरी की बात आ गई ना. बारिश का जो पानी पार्क में आता था उसको ये गटर में डाल देते थे, ड्रेन में. मैंने उसकी फोटो ली, कंप्लेंट्स डाली, पूरा एक तरह से एक पैकेज बना दिया कि इनको इस तरह से घेर लो कि इनकी नौकरी के बाद आ जाए. अभी उस पार्क में वाटर टैंक बना है, अंडर वाटर टैंक, रिजर्वायर जो बनाते हैं पानी का, मेरे घर के सामने बन ही रहा है अभी 2-3 महीने से. क्योंकि एनजीटी ने स्टे लगा दिया कि आप बोरवेल्स नहीं बना सकते, अब ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे. तो ये एक लोकल लेवल की वॉर थी और उसे जीता गया. इसका इम्पैक्ट पूरी सिटी पे आया. बस दैट इज द ओनली अचीवमेंट. कि मैंने मांगा तो अपने पार्क के लिए था, बट एनजीटी क्योंकि यार इट्स अ नेशनल बॉडी, तो उसने महसूस किया कोई व्यक्ति कह रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और वो सिटी लेवल का केस था, जीत गया. मैं तो उम्मीद करता हूँ बाकी सिटीज में भी लोगों को मांगना चाहिए सब कुछ. इट्स ऑल अबाउट राइट्स. मेरे को कॉलेज में सिखाया गया था जब तक आप मांगोगे नहीं, ऑलवेज द आंसर विल बी नो. So you raise a demand, then there is negotiation, then there is yes or no, and the fight continues. I believe. Thank you. Thank you, Paras. Thank you, Paras. And I think I really like your idea of taking this to children, and like you know, you also have the school really. So we would, I think we'll get in touch with you separately and see how we can collaborate and bring it to children. Sorry, Hema, you were saying something. Yeah, actually, I want to add something, and I really appreciate Paras because he really searched a lot, very deeply knowledge about that, urbanization and that thing, and really it is good for the children also. क्योंकि जब स्कूल में बच्चों को अगर हम बता देंगे, they will aware, they will become sensible. एक जब responsible human being बनेंगे तो वो जरूर इस बारे में सोच पाएंगे, कर पाएंगे. कहीं ना कहीं पारस मुझे लगता है कि पीपल अपना एक छोटा सा फायदा देखते हैं. लोग अगर अपना छोटा फायदा सोचना छोड़ दे तो शायद वो जो बड़े लेवल पर सोच पाएंगे जो आपने सोचा है, क्योंकि वो देखते हैं क्या गलत हो रहा है बट कोई आवाज उठाना नहीं चाहता. जो आपने उठाई है और जो आप कर रहे हैं, रियली इट्स आई ओपनर. और आई होप आप बहुत आगे तक करें, लोगों को अवेयर करें एंड एनवायरनमेंट में अपना योगदान दें. मानवेंद्र ने भी जो अपनी स्टोरी शेयर की, रियली इट वाज आल्सो गुड. लाइक आई वाज इमेजिन व्हेन ही वाज शेयरिंग हिज स्टोरी, काफी विजुअल थी और उसको हम समझ पाए कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और कहाँ तक पहुंचे हैं. और जो चाहते थे उन्हें खुशी, उनके चेहरे पे जो मुस्कान दिख रही है, मुझे लगता है ये इसी कारण है क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं और उन्हें जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, ही इज डूइंग व्हाट ही वांटेड. और रियली काफी अच्छा लगा. और मैं आप दोनों से इसलिए बहुत इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि एज अ स्कूल लीडर मैं जो सोचती हूँ कि बच्चों को अभी से अगर हम तैयार करें, अगर वो बीज उनमें डाले जाए, वो बातें उन्हें समझाई जाए, बताई जाए, तो डेफिनेटली जब वो आप लोगों तक की एज में आएंगे, जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बने. इन्वायरमेंट को लेकर भी उतना ही सजग रहें और आसपास के लोगों के लिए इमोशंस भी हों, अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करने का मन हो. ऐसा ना हो कि वो भी उस भीड़ में शामिल हो जाए और अपने आप को भूल जाए. तो थैंक यू सो मच. आप दोनों ने बहुत कुछ सिखाया मुझे आज. एंड थैंक यू फराह फॉर यू ऑल्सो. आपने इतना अच्छा सब लोगों को यहाँ रखा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिला मुझे, दोनों से, पारस एंड मानवेंद्र से. थैंक यू. Thank you everybody for joining in. सभी के हेमा, मानवेंद्र, पारस and any all of us who are here.
I think ये जो reforestation है, it's like we are doing physical reforestation जैसे मानवेंद्र कर रहा है. हेमा जी आप जो कर रही हैं, you are reforesting the minds of children, and in some ways and Paras is also working in reforesting, or at least keeping urban spaces also more green through the work that he's doing. So in that sense, there is a great thematic continuation, and I think we're very happy. अच्छा लगा आप तीनों का journey सुन के, I think story सुन के, I think we had a good time. I think Mahesh ji want to share something. Do you have any questions, sir? Yes. Yeah, Yeah, please go please ahead. go. I think you are on mute. You're on mute, Mahesh ji. Huh. Yeah, thank you very much. Team Bhumi and all the participant. I thank to my team members, means San Marino के teachers भी आज available थे इस talk show में. So I request Farah that you are the director of Bhumi as well as Prakriya School. So Not Prakriya School, sorry. Prakriya, only Bhumi College. Okay, no issue. I think, but both the things, both the institute are the part of same organization somewhere. They are connected. So when we went Bangalore in 2015-16, और जो वहां पर हेमा जी ने सीखा और जितने जोरदार तरीके से उन्होंने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया, तो इट वाज माइंड ब्लोइंग और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए. हर जीवन में जहां भी हम कुछ करप्शन देख रहे हैं, ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, अव्यवस्थाएं देख रहे हैं, सबका मूल कारण एक ही होता है, एजुकेशन. नॉट ओनली स्कूल एजुकेशन बट द एजुकेशन फ्रॉम द होम. तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो प्रोग्राम आप लोगों ने डिजाइन किया है वो हमारे टीचर्स को भी मिले. बिकॉज जब टीचर्स को हम सिखाते हैं तो उन्हें ये एक नया तो लगता है, लेकिन जब टीचर खुद जाके भूमि कॉलेज में रहेंगे, एक 15 दिन का या एक हफ्ते का कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल एजुकेशन में कैसे हम बच्चों को सस्टेनेबल बना सकते हैं, उस पे कोई प्रोग्राम मॉड्यूल तैयार हो जिसमें बच्चे आए, या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो आपकी टीम हमारे कैंपस में आए, हमारे टीचर्स को एक वीक का प्रोग्राम रखें और उनको ट्रेंड करें. क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जो बेंगलोर में हो रहा है सिर्फ हम ही लोग कर पा रहे हैं, बाकी किसी भी स्कूल में ये काम नहीं हो रहा है. इसके लिए तो हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि इतनी बढ़िया चीज हमने सीखी और यहाँ इम्प्लीमेंट करी. और आज आप बोल रहे हैं तो दोनों ही हम लोग आउटसाइड दिस थिंग मीटिंग वी कैन टॉक. दोनों ही ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं. राइट. वी डू हैव अ शॉर्ट प्रोग्राम जो आप बोल रहे हैं 15 दिन का होता है, हमारा फेलोशिप के बीच में ही होता है, लेकिन विच इज ओपन टू आउटसाइडर्स एज वेल. तो वी कैन गिव यू द डिटेल्स ऑफलाइन. वी कैन गेट इन टच एंड डिस्कस दिस. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Thank you. Again, I would like to thank Paras, Hema and Manvendra for joining us, and all the others, all the teachers from San Marino School and all the others who joined us today. Thank you so much for making time for this. Thank you. Thank you everyone. Good day. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Oh, we are just closing. I will have some 5 minutes with Adil. Sorry. It's little spicy.